What is up, India? How is it going, everyone? All good? Excited? Ready for today? Good evening, guys. Good evening. I'm super excited, and very soon I'll be coming live in front of you. How many of you guys are super excited to take your English fluency to the next level? We guys are going to start within 5 minutes. We are waiting for more people to join in. Already more than 3,000 people have become the part of this amazing event already. 3,000 people are live. And I know that this particular event is going to be one of your best event ever in terms of spoken English, in terms of English fluency. And I totally understand that because of lack of English, you are not able to speak. The confidence is not there. You want to speak, the ideas are there, but you're not able to get those ideas out from your mouth. And that is what we guys will be working upon. How many of you guys are ready? And before we start, I would love to know that from which part of the country you are watching this particular event. Let me know from which part of the country you guys are watching this particular event. And एक चीज और है, there is one more thing. I would request everyone to quickly switch from mobile to the laptops. How many of you guys have laptops or the bigger screens? Quickly, guys, I would request everyone. We guys are just left with 4 minutes. Quickly switch from mobile phone to the laptop. If you don't have the laptop, then you can continue watching it from the mobile phone. But take out your pen, paper, and the laptop. Quickly, guys, switch to the laptop. If by any chance you don't have the laptop, you can skip it. Don't worry. You can just watch it on the mobile phone. But अगर laptop है, कोई बड़ी screen है, उसी पे ही देखो, उसी पे ही देखना, समझना, और अपने फोन को साइलेंट कर देना. That should be the way. That should be the way. People are from West Bengal, Ranchi, Orissa, right? Kanpur, right? Quickly, guys. Okay, so just enjoy this wonderful beat. I'll be right in front of you within 3 minutes. We guys are starting one of the India's biggest spoken English event for the past 2.5 years. And I can't thank you much, guys. So we guys are going to start. Wow, आज बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं. Engineers, teachers, people from the accounting field, advocate, managers, students, homemakers, like आप लोगों को जो भी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स आती हैं, we guys have the entire idea about it, and we guys will be talking about the solutions. So guys, yeah, CAs means obviously the accounting field. So enjoy this beat music. We guys will be live within 2 minutes, and I know I'm super excited. So you guys are 2 minute बाद मिलते हैं. Thank you. बिटू मेरे लैपटॉप का पेन नहीं है. All set for today. So guys, within 40 seconds, we guys are going to be live. And thank you so much for all the support. We guys are starting in just 40 seconds. But before we start,
Right, एक बारी chats को बंद कर देते हैं because I would love to know. Okay, the chats are already closed. So guys, आप लोगों की स्क्रीन के सामने अभी एक पोल आने वाला है because before we start, I would really love to know that what you guys actually do. Right, आप एक स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, होम मेकर हो. So I'm launching one particular poll and I would love to know your profession. So 3, 2, 1, here is the poll. Quickly guys, आप लोगों के स्क्रीन के सामने अभी एक पोल होगा. आप प्लीज इस पे लाइक पोल करें that what you guys actually are. इंजीनियर हो, टीचर हो, अकाउंटिंग फील्ड से हो, सीएस अकाउंटिंग फील्ड को कर सकते हैं, एडवोकेट्स हो या स्टूडेंट हो. You guys can do it. That would be great. फटाफट करो and then we guys will start this wonderful session. फटाफट करो guys. Done. So guys, 10 more seconds. Right, आपको पोल पे डालना है. That would be great. अगर others हो, आप स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, मैनेजर हो, एडवोकेट हो, अकाउंटिंग फील्ड से हो, I can see so many. Right. Okay. Quickly guys, quickly do it. Quickly. So मैं पोल like end कर रहा हूं within 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. I would really appreciate all your answers. Now, आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, आप लोगों ने already, you guys have told us. Now, I would really also love to know that what kind of problems, like, but yeah, what kind of problems you guys are facing. उसके लिए भी we guys have launched one particular poll. फटाफट आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हो. Everyone, quickly write down your problem. चैट्स पे नहीं लिखना है. पोल जो हम लोगों ने आपको डाला है, right? You need to write. You need to basically type quickly, guys. Everyone, because until and unless you have no idea that what is your problem, and problem में ये मत लिखना कि मुझे इंग्लिश बोलना है. वो तो यहाँ पे सबको बोलना है. Everyone wants to speak here English only. The thing which you need to write that because of English, because of the lackness of the English language, what you are not able to do. Like for example, engineer will say that मैं English नहीं बोल पाता, I'm not able to communicate in English. That's why I'm not able to speak confidently in meetings. So that becomes a problem. Problem को बहुत सोच समझ के लिखना. If you're a student, write it down like this way कि I am learning so that I can like enhance my personality, or I can like crack the interviews. So English ना आ जाने की वजह से, ना आने की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, you need to write it down that. Quickly, everyone do it. And once this particular activity would, everyone quickly do it. I'm starting the music. फटाफट सब लोग करो. Quickly, guys, do it. And within 1 minute, we guys are going to start discussing about the solutions of these particular problems. Done? सबने कर लिया? You guys have 1 more minute. Quickly do it. And then we guys are going to start the most amazing session you guys have ever been part of in terms of English. Done? Everyone has typed it down? Sab log likho. Okay. So guys, within 20 seconds, I will end the poll. Quickly. 15 seconds. Because jab tak aapko aapki problems hi nahi pata hai, there would be no logic that you will learn, or there is no logic that you will be able to, find the solution of your problem. You should first of all know, like ये सिर्फ मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हालत है. बट उस हालत की वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है, लाइक क्या आप करना चाहते हो. राइट इट डाउन दैट कि यार मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा, लाइक अगर मैं एक मैनेजर हूं तो मैं टीम को लीड नहीं कर पा रहा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. राइट. डन. एवरीवन डन. ओके. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The poll has been ended. So, how many of you guys are now excited to start this wonderful mega day 1 with me? So, we guys are starting just 1 minute to go. Here we go. Now, how many of you guys can see me, by the way? We guys are starting in the count of 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3. Just give me a second. It could be a technical glitch. Okay, here we go. Yeah. Am I clearly visible, guys? Let me know. All set, clearly visible, done. How many of you guys can see? All set, ready for today? Great, great. So, guys, कितने लोगों का ये resolution था that in the year 2023, you guys are going to become fluent in English? Everyone had this particular resolution, but आपको ऐसा पता है, like, what's the reason that why you were not able to become fluent in English in the year 2023? Do you guys agree there was only one logic? Logic ये था कि ये तो पता था that we have to become fluent in English, but we have no idea that what should be my step number 1, 2, 3 and 4. How many of you guys can relate with it? Yes or no? हाँ या ना? मुझे बताओ, यही तो रीजन है ना? पता तो है कि यार फ्लुएंट बनना है, पर ये नहीं पता कि कैसे बनना है. That's exactly what we guys will be working upon. And before we begin, I would love to give my quick introduction and then we guys are going to start. सब लोगों ने अपना notebook and pen निकाली है. Everyone, quickly take out your pen and paper and make sure that no one is writing any irrelevant stuff on the chat box, because guys we will throw the people out जो लोग like chat box में थोड़ा chaos create करेंगे. So my little introduction would be, my name is Aman Maskeen and I am going to be your English fluency coach for not just these particular 2 days but even after these particular 2 days. And why English fluency coach? Because आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यार इस 2023 में ना इंग्लिश पढ़ के थक चुके हैं बट इंग्लिश बोलना नहीं आया है? मुझे बताओ. How many of you guys are totally tired of learning, getting taught in English, but speaking in English is still a problem? So I am going to share the direct hacks that how come you can easily become fluent in English, and that's what exactly I will be that's exactly what I'll be sharing. So far in the past 28 months, we have made more than 15,200 people fluent in English. And मैं आपको जितनी भी आज strategies बताऊंगा, जितनी भी चीजों के बारे में बताऊंगा, right, all those particular strategies have already been encouraged and enhanced by or like published by Josh Talk, Aaj Tak and all these particular news channels, right? So एक simple सी चीज ये कि इन 2 या 3 दिन के इवेंट का मतलब क्या है भाई? लॉजिक क्या है? Logic is very simple: to make India fluent in English directly without wasting time on studying. तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो यार इंग्लिश को पढ़ना नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं? हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? कितने लोग ऐसे हैं जो यार पढ़ना नहीं चाहते and directly इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं? That's exactly what we guys will be sharing. ये different इसलिए ही है because I can guarantee you this particular thing. So many of you guys have no idea about these particular concepts कि ये English शस्त्र क्या होता है. What are these particular concepts of brain and water, Taft principle, Who principle जैसे new 2024 के आपको advanced principles and concepts नहीं पता, and that's what my guarantee is कि यही reason है कि आपको अभी English में problem आ रही है. And these are going to be the exact points which we guys will be discussing. Now, these are going to be my certain pictures, like twice a Josh Talk speaker, Aaj Tak, India News, like, you know, my photo, like awarded by Malaika Arora and all that. But मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को, right, there is any logic, right, showing off my achievements, because अगर मैं इन 2 दिनों में आप लोगों को improve नहीं कर पाया, enhance नहीं कर पाया, there is not going to be any, like, my achievements are of no use. Start करें, bang to the point, चलो. सब लोगों ने अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लिया है? Now let's quickly get started. Okay, so in these particular 2 days, the agenda is very simple, that we guys are going to cover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points these, and you know 1, 2, 3, like 5-6 cheezein. So we guys are going to cover the most important 11 things which you guys have no idea about in terms of your English language. Done? Easy? कोई दिक्कत तो नहीं है? Someone is saying I am not visible. Is it so? सबको मेरी voice and like video clear है? Right? Someone is saying मैं visible नहीं हूँ. Is it so? Right? Just give me one quick minute. Let me check my internet connection. Here we go. थोड़ा सा बीच में अटकेगा. Quick minute. It will be fine. Now it's all okay. अब सही है? मुझे बताओ. I have changed my internet connection. It was an issue from our side. So sorry for that. Done? Chalo. So guys, let's start with this amazing concept of 2024. First of all, I'll let you know, fluency is not what you think.
आप लोगों को एज एन इंजीनियर ईमेल राइटिंग लिखनी है, राइट? यू नीड टू इंप्रेस पीपल इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, यू नीड टू बी अ कम्युनिकेशन कोच, यू वांट टू बी अ गुड ट्रेनर, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा बिकॉज आपको फ्लुएंसी पता ही नहीं है होती क्या। फ्लुएंसी जस्ट बिना रुके इंग्लिश में बोलना, दैट्स नॉट फ्लुएंसी, राइट? That's not fluency. That's what we'll be discussing about. What should be your first step? यार मैं इंग्लिश में बहुत मेहनत करता हूं पर मुझे यही नहीं पता कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है। what should be my current English level? I will let you know that आप लोगों का इंग्लिश लेवल क्या है, and उसके अकॉर्डिंग what exactly you guys need to do. Level oriented practice. We guys are going to do the live practice so that you can feel the results. There is one very big announcement which I need to make. आपको पिछले 20 साल में जो इंप्रूवमेंट फील नहीं हुआ, दैट्स आई प्रॉमिस यू कि इन 2 दिनों में फील होगा। सो 20 years of hard work of yours, and we guys are going to give you the better results in just 2 days, as simple as that. and ये जितने भी न्यू कंसेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे, प्लस वोकैबुलरी को कैसे इनहांस करना है इन 10 minutes एक्टिविटी, आई विल गोइंग टू ट्रेन यू दैट। एंड व्हाट इज द फ्लुएंसी सीक्रेट ऑफ एक्टर्स इन क्रिकेटर्स? यार आप लोगों को लगता है कि एक्टर्स एंड जो क्रिकेटर्स हैं वो आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। But how is it so that they can speak and you guys can't? I'll share their secret. That is for sure. Now, once this particular thing would be done, how to start a sentence or a conversation? कितने लोग ऐसे हैं जिनको यार सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं करना आता? Like once you have the environment of English around, like you guys start shivering in your brain. Hi Anna, how many of you guys can relate with it? Yes or no? We guys will work upon that. How to finish speaking and writing with zero errors? कि यार मैं स्टार्ट तो कर देता हूं पर जब तक मैं खत्म करता हूं तब तक मैं 10 गलतियां कर चुका होता हूं, राइट? माई ब्रेन इज नॉट ऑपरेटिंग। That's what we will be working now. Live practice to experience the quick fluency results, वो मैं आपको करवाऊंगा। एंड आपका डेली 45 मिनट्स के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? एंड इंग्लिश कोई ज्यादा बड़ी गेम भी नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ 7 to 8 weeks। उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, आई विल बी वर्किंग अपॉन दैट। And also the people those who will perform well in these particular 2 days, I will be selecting 250 people. We will be selecting 250 people जिनको we will give them like 50% scholarship. That's the way it's going to be happening. Done? सबको एजेंडा समझ में आ गया? स्टार्ट करें। Excited for the magic? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। By the way, and I don't need much time of yours, quick 60 to 75 minutes. Today's session would be till 8:20 p.m. कल का जो सेशन है it would be from 6:45 to 9 p.m. जितनी भी चीजें हम इन 2 दिनों में करेंगे ना, उन सबका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन डे 3 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले सीखेंगे क्योंकि अभी तक जब तक कुछ आता ही नहीं, तो व्हाट वी कैन प्रैक्टिस, ब्लाइंडली प्रैक्टिस नहीं करनी है। वी नीड टू डू द प्रैक्टिस विद लॉजिक्स, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। डन? स्टार्ट करें, चलो। एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। फटाफट सब लोग नोटबुक एंड पेन निकाल लिया? ठीक है, ग्रेट। नाउ the most important question is, in order to become fluent in English, what to do and how to do. What if I tell you that these particular 2 questions have no logic? यार क्या करना है, कैसे करना है, इस इन दोनों चीजों की कोई सेंस नहीं बनेगी जब तक आप लोगों को आपका लेवल ना पता हो। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस विल बी डूइंग। पहले हम अपने लेवल पे काम करेंगे, फिर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दैट्स द वे गोइंग टू बी द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। चलो यार, अब हो क्या रहा है, कितने लोगों ने ये पीस ऑफ एडवाइस सुनी है कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो ज्यादा से ज्यादा बात करो एंड इंग्लिश में आप लोग फ्लुएंट हो जाओगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग? एंड होता क्या है कि व्हेन आई ट्राई टू स्पीक, राइट, वर्ड्स निकलते हैं बट इसी तरीके से, एंड आई हैव लॉट ऑफ फियर, हेजिटेशन, फंबल, क्लटर्ड माइंड। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और मैं बिल्कुल स्टक हो जाता हूं। अब आपको कभी इसका लॉजिक पता है? जब ये सारी की सारी चीजें होती है ना, आप सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज लगती है कि यार मेरी प्रैक्टिस में कमी है ना, मेरी प्रैक्टिस में कमी है, तभी ये मुझे सारी चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं है, राइट? प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। रूल नंबर 1, इसको कहीं नोटबुक पे लिख लो आप। प्रैक्टिस इज यूजलेस इफ इट इज नॉट एज पर योर लेवल। हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें लेवल ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब यार मैंने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की, मुझे बहुत ज्यादा फियर है, हेजिटेशन है, फंबल है, मेरा दिमाग हिलता है, मैं स्टक हो जाता हूं, और फिर मुझे लगता है कि मैं फ्लुएंट क्यों नहीं हो पा रहा। आपको पता है उसका रीजन क्या है? रीजन इज इन माई किचन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू एंटर इनटू माय किचन? मैं अब आपको एक लॉजिक समझाता हूं एंड वही ट्रांजिशन से
we guys will start enhancing you, we guys will start improving you in terms of English. लॉजिक ये है, आप सब लोग मुझे लॉजिक के बारे में बताना, लाइक अभी इंग्लिश को थोड़ा हम साइड में रखते हैं. यार दिस इज द टैप, आई नीड वाटर, आई ओपन दिस पर्टिकुलर टैप, द वाटर केम फॉर 2 minutes. चलो सब लोग मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर दोगे. यार मैंने टैप को ओपन किया, द वाटर केम फॉर 2 minutes एंड देन इट स्टॉप कमिंग. व्हाट कुड बी द नंबर वन रीजन कि व्हाई वाटर इज नॉट कमिंग नाउ? लेट मी नो. What could be the number one reason why the water is not coming now? Okay, Manish का सबसे पहला आंसर यह है, tank is empty. Right? What else? मुझे बताओ. Empty tank. Tap was closed. नहीं, tap तो खोली है. Right? तभी तो 2 मिनट के लिए पानी आया है. Right? ठीक है. Someone is saying पानी खत्म हो गया. Right? पानी खत्म. Right? Okay. Now this is the exact image of your brain. Now understand this particular concept. ये आप लोगों का दिमाग है. What is this tap? This is mouth. This is mouth. And what is this water? This is your English language. And how many of you guys can relate with it? कि जितनी भी English आपके दिमाग में है, what this thing is all about? This thing is all about being correct in English. जितनी भी करेक्ट इंग्लिश की नॉलेज आपके दिमाग में है, उतना तो आप बोल लेते हो. बट एज इंग्लिश के लाइक आपके दिमाग में करेक्ट इंग्लिश की नॉलेज है ही नहीं. That's the only reason why this particular water stopped coming. How many of you guys can relate with this particular example? हाँ या ना? How many of you guys can relate with this particular example? Because अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि तुम में से कितने लोगों को इंग्लिश की समझ है, there would be very few. Because समझ तो है बट वो इंस्टॉलमेंट्स में है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है. And majorly people think that problem is here. Majorly people think the problem is here, but actually problem is not here. टैप खुला रखने से पानी नहीं आएगा. The first very common and obvious thing is we need to fill this particular water tank with the correct English. अपने दिमाग में थोड़ी सी correct English डालेंगे, तब जाके इंग्लिश ढंग से निकलेगी. As simple as that. सबको लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? How many of you guys can relate with it? This is the most important, like this is the most common problem which I feel people are having the empty brain. Like तुम लोगों का दिमाग अभी खाली है इंग्लिश में, पर बोलने का बहुत चाहत है. ऐसे नहीं होने वाला. पहले इसको फिल करते हैं, देन वी विल प्रोसीड. राइट? सबको ये चीज समझ में आ गई है? अब प्रॉब्लम बताए क्या है कि अब सब लोग अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू मेक योर इंग्लिश करेक्ट? ऑलमोस्ट एवरीवन. यार अब ना मुझे इंग्लिश को करेक्ट तो करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि बचपन से एक चीज, there is one thing which have been following us since childhood, that is कि यार अगर हमें अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? लॉजिक समझना अभी. राइट? बिकॉज आप लोगों को पढ़ना नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को, लॉजिक समझने, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. प्रॉब्लम ये है कि हमें ये लगता है कि अगर मुझे मेरा ये दिमाग भरना है ना, तो दिमाग भरने के लिए विद द करेक्ट नॉलेज आई शुड बी लर्निंग ग्रामर. एंड इसी की वजह से हम लोग फ्लुएंट नहीं हो पा रहे. डू यू गाइस एग्री? कि हमें यही लगता है कि यार मुझे तो इंग्लिश आनी चाहिए. अब आने के लिए, इंग्लिश आने के लिए तो मेरा दिमाग भरा होना चाहिए ना. अब दिमाग भरने के लिए मुझे करेक्ट नॉलेज आनी चाहिए. एंड करेक्ट नॉलेज इज दिस: सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब्स के रूल्स. ये ग्रामर रूल्स आ जाते हैं. और मैं एक दिन याद करता हूं, 2 दिन याद करता हूं. अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, इंजीनियर्स को लगता है यार मैं एक इंजीनियर हूं, ये क्या मुझे चीजें याद की जा रही है, मैं बोर हो जाता हूं. और विद इन 2 दिन के अंदर अंदर मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है एंड इंग्लिश इज गॉन. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि वी आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर? कोई भी रूल कहीं भी उठ के आ जाता है, पता ही नहीं लगता हैज बीन का क्या सीन है, वुड हैव का क्या सीन है. व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस इज द रॉन्ग लॉजिक? ये लॉजिक इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए ठीक था. दिस लॉजिक वाज ग्रेट इन ऑर्डर टू गेट द गुड मार्क्स, बट इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, इन ऑर्डर टू इंप्रेस वेल, in order to express your ideas well, we need direct fluency approach. Yes or no? How many of you guys are ready for direct fluency approach? अब ना direct fluency approach ना बहुत simple है, उसमें कोई rocket science ही नहीं है. Direct fluency approach. Now, how many of you guys want to master English language without grammar? That's what exactly you guys will be doing. करें, start करें. सबको समझ में आ गया? इंग्लिश चाहे अभी आप इसको माउथ मांगो या अपना हैंड्स मानो, इंग्लिश निकल इसलिए नहीं रही है क्योंकि दिमाग खाली है. और दिमाग खाली है ना, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है. कॉन्फिडेंस तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मुझे श्योरिटी नहीं होगी कि यार जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं वो करेक्ट है. अब नाउ द क्वेश्चन इज, राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, यू गाइस एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा
कि यार अमन हाउ टू बी करेक्ट, हाँ या ना, बात में दम है ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है यार अब समझ में आ गया करेक्ट होने, तो हाउ टू बी करेक्ट। बट बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स हाउ वी कैन बी करेक्ट, आई वॉन्ट एवरीवन, सब लोग अपने नोटबुक एंड पेन निकाल लो, बिकॉज सिर्फ हमें हवा में आप लोग मेरा यहाँ पे भाषण सुनने नहीं आए हो। फटाफट क्विकली गाइस टेक आउट योर notebook and pen and write down this very important logic, I1 logic, oh my g, I1 logic, that is going to be, फटाफट सब लोग लिखो, biggest mistake, my brain is empty and I always try to speak, but इसका आंसर क्या होगा? First I will fill my brain with correct English, then I will open my mouth, and when I say open my mouth, मीटिंग में मुंह तब तक नहीं खुलेगा ढंग से जब तक मेरे दिमाग में श्योरिटी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। आप में से कितने लोग ऐसे होते हैं कि यार अमन आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब क्या है? दिमाग खाली है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। आया समझ में? डन। You guys can even take the screenshot or you guys can write down these particular way too much important points। पहला चीज समझ में आया, ब्रेन खाली है, ब्रेन को भरना है करेक्ट इंग्लिश से। अगर मैं खाली ब्रेन को लेके दुनिया भर में बोलता रहूंगा, it is going to be a total stupidity। Now moving to the second point, अब यार इंग्लिश में करेक्ट कैसे होना है? यार इंग्लिश में करेक्ट होने के लिए ना, आई डोंट थिंक सो यू नीड लाइक एनी लॉजिक्स, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात ये है, हाउ टू बी करेक्ट इन इंग्लिश, एनीथिंग यू वांट टू राइट एंड स्पीक, डू यू गाइस एग्री? कुछ भी इस लैंग्वेज में लिखना है ना, तो आपको सेंटेंस का स्टार्टिंग आनी चाहिए एंड फिनिशिंग आनी चाहिए, हाँ या ना? मुझे बताओ यस और नो, कितने लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार आपको कुछ भी इंग्लिश में बोलना है, इफ टुडे आई एम एबल टू स्पीक, इफ टुडे आई एम एबल टू राइट, दैट इज बिकॉज मेरे दिमाग में कोई भी थॉट आता है, I know how come I can start that thought and I know how can I finish it with zero errors। Yes or no? और यही प्रॉब्लम है, आधे लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, जो लोग स्टार्ट कर पाते हैं वो खत्म नहीं कर पाते विदाउट एरर्स। अब इसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड ये जितनी भी ईमेल राइटिंग की प्रॉब्लम है, ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम है, मैं आई नोटिस दैट देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, वो अपने स्टूडेंट्स के नोटबुक्स पे 2 लाइन नहीं लिख पा रहे हैं इंग्लिश की, उनके मन में तो बहुत कुछ है स्टूडेंट्स के बारे में लिखने के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर मदर्स हियर बाय द वे? कितने लोग मुझे बताओ मदर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर मदर्स? कितनी मदर्स इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप इंग्लिश ना आने की वजह से आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे हेल्प नहीं कर पा रहे हो? यस और नो? कि उनके कोई सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हो, एंड इंग्लिश ना आ जाने की वजह से आपके बच्चे भी आपको लगता है कि क्या यार मम्मी आपको इंग्लिश नहीं आती, छोड़ो मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। यस और नो? यू गाइस एग्री? नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब हम समझते हैं कि यार किसी भी इस दुनिया के सेंटेंस को स्टार्ट या फिनिश करना है ना, तो उसके ट्रिक्स क्या होते हैं? यू आर जस्ट 1 or 2 ट्रिक्स अवे इन ऑर्डर टू मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ट्रिक्स आर वेरी सिंपल। देखो यार एक सिंपल सी बात है, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए स्टार्ट फिनिश आना चाहिए। अब द क्वेश्चन इज स्टार्ट करते कैसे हैं? स्टार्ट करने के लिए यू शुड बी नोइंग द डी टेक्निक एंड द टाइम एंड सेंस की टेक्निक, वे टू मच इंपॉर्टेंट, एंड ये 2024 की लेटेस्ट टेक्निक्स होंगी। कितने लोगों को डी टेक्निक पता ही नहीं है कि ये क्या होती है? कितने लोगों को टाइम एंड सेंस का कंसेप्ट नहीं पता? मुझे बताओ, मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव नो आइडिया कि यार ये डी टेक्निक क्या होती है, ये टाइम एंड सेंस क्या होता है? यस और नो? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव नो आइडिया कि भाई ये क्या चीजें होती हैं? ओके नाउ दीज आर द ओनली रीजंस कि आपको ये हैक्स नहीं पता ना, तभी आप लोग लिख नहीं पा रहे हो एंड बोल नहीं पा रहे हो। आज मैं आपको इन हैक्स की ही ट्रेनिंग दूंगा, यू गाइस आर गोइंग टू लव इट, राइट? सबको समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे दिमाग खाली है तो इसलिए करेक्ट होना है, करेक्ट होने के लिए क्या आना चाहिए? स्टार्ट एंड फिनिश आना चाहिए। स्टार्टिंग कैसे होती है किसी भी सेंटेंस की? बिगनिंग में while using the D technique and time and sense, and then the finish we have to do it from the formation sheets। If there is any sentence in Hindi or in any of your native language with using these small 3 principles, within 2 seconds you can frame any damn sentence in English. Any damn sentence in English can be framed। How many of you guys would love to learn this particular technique? मुझे बताओ, हाँ या ना? कितने लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि वाह यार ये क्या होती है डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस, फॉर्मेशन शीट? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, बिकॉज हमें हमेशा लगता था कि ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ये आपकी पूरी की पूरी ग्रामर इज जस्ट 3 principles अवे, दैट्स इट। चैट्स को बंद कर दो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो ये 3 चीजें है ना, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट,
सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लेजेंडरी डी टेक्निक. आप लोगों के राइट, यू गाइज आर गोइंग टू बी गेटिंग ब्लोन इन योर माइंड. आपका दिमाग हिलने वाला है. तो सबका फोकस टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डी टेक्निक. यार डी टेक्निक इतनी सिंपल है, ये मैंने अपने मम्मी को भी सिखाई थी. मेरी मम्मी थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्कूल से थी. मैंने उनको 10 मिनट के लिए सिखाई और वो इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने लगती हैं एंड सही स्टार्ट करती हैं. कैसे? आई वुड लव टू ट्रेन यू. यानी ईमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. देखो गाइस, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डी टेक्निक. अब डी टेक्निक का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से दिखती है. डी टेक्निक का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू ऑलवेज, कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस आ जाए ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे के भी बताऊंगा एंड सब लोगों का ध्यान टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. ओके, नाउ डी टेक्निक का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लुक फॉर द रूट सेंटेंस. लुक, if I talk about your English language, there would be always this cases where you need to speak long sentences. कितने लोग ऐसे हैं जिनका पेन ही यही है, यार अमन मैं छोटे मोटे सेंटेंसेस तो बोल लेता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस में बीच में अटक जाता हूं. हाँ या ना? यही प्रॉब्लम है ना? अब प्रॉब्लम पता है ये क्यों है? बिकॉज आप लोग सेंटेंस के रूट सेंटेंस को नहीं पकड़ पा रहे हो एंड दैट्स द रीजन दैट व्हेन द सेंटेंस इज लॉन्ग, छोटे मोटे तो आप बोल लेते हो, कम हेयर, गो देयर, आई विल गो, आई विल कम, ऐसे नहीं. ये लॉन्ग सेंटेंसेस जो ईमेल्स में लिखने होते हैं, यू गाइस आर नॉट एबल टू राइट बिकॉज आपको रूट्स का सेंटेंस नहीं पता. रूट इज द जड़ ऑफ द सेंटेंस. मैं आपको बताता हूं. सो डी टेक्निक बेसिकली मींस दिस इज डी. यस और नो? ये डी है. नाउ लेट्स फोकस अपॉन द स्लीपिंग डी. कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस आ जाए ना, आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस, राइट, एंड यू जस्ट हैव टू कम बैक. दिस इज द मैजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच वी हैव क्रिएटेड. दिस इज द मैजिक. एंड आप ये देख पा रहे होंगे, इट लुक्स लाइक अ स्लीपिंग डी. ये सोता हुआ डी की तरह लगता है. अभी ये मैजिक का आपको वाव फैक्टर पता नहीं लग रहा? आई विल मेक यू सी. अब इसी टेक्निक की वजह से ना, यू कैन लुक फॉर द रूट सेंटेंस. कैसे? लिसन टू मी. फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर इंजीनियर्स? इमेजिन करो, ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जो आपको लिखना है. अब आप मेरी स्पीड देखना, हाउ आई विल बी राइटिंग इट अप विद यूजिंग वेरी कॉमन सेंस. ओके, मैं मीटिंग के लिए, मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. इमेजिन अ फैक्ट कि ये वाला सेंटेंस मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता. अब मुझे पता ही नहीं हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि व्हाट वहीं लगती है. अब देखो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा व्हाइल यूजिंग द डी टेक्निक. डी टेक्निक का मतलब क्या था? वी जस्ट हैव टू गो लाइक दिस एंड कम बैक. नाउ, एंड डी टेक्निक आल्सो मेंट रूट सेंटेंस. डू यू गाइस एग्री कि इफ आई सर्कल दिस, मैंने मीटिंग के लिए नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. इफ आई से मैंने प्रिपेयर की है, मैंने प्रिपेयर करी है, डू यू गाइस एग्री इट्स अ रूट ऑफ द सेंटेंस. अब मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, मैंने पीपीटी प्रिपेयर की है, मैंने कोई सॉन्ग प्रिपेयर किया है, ये बीच में कुछ भी लिखा हुआ है, आई डोंट इवन केयर, बट डू यू गाइस एग्री कि मैंने प्रिपेयर करी है, दैट इज अ रूट ऑफ द सेंटेंस. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब बीच में कुछ भी है, प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग के लिए, ऑफिस के लिए, राइट, अपने बॉस के लिए, बट मैंने कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करा है, राइट, मैंने प्रिपेयर करी है. नाउ लुक एट द मैजिक. आई विल स्टार्ट इवन राइटिंग द सेंटेंस नाउ. मैंने प्रिपेयर करी है तो क्या आएगी? इंग्लिश वुड बी आई हैव. सबको दिख रहा है आराम से? ओके, लेट मी मेक इट. जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट. आप समझना, दीज आर द हैक्स व्हिच यू गाइस नीड टू मास्टर. यही आपके पास, इसके लिए कोई ग्रामर नहीं पढ़ने की जरूरत है. आई, क्या होगा? हैव आई हैव प्रिपेयर्ड, I have prepared, right? This is what we have written. I have prepared मतलब मैंने प्रिपेयर करी है. अब ये have कैसे आया? अभी उसकी टेंशन मत लेना, अभी लॉजिक समझो, लैंग्वेज का डीएनए समझो. I have prepared. Now, the magic of the D technique is, मैंने रूट सेंटेंस को सॉल्व कर दिया ना. Now the game is all sorted. I just need to now come back. How? मैंने प्रिपेयर की है, क्या लिखा हुआ है? एक नई प्रेजेंटेशन. एक नई प्रेजेंटेशन की इंग्लिश आपको ऑलरेडी पता है. सिंपली राइट अ new, obviously a new presentation. You guys can see how I completed a long sentence. It's just a beginning. Beginners के लिए sentence is just a wow, right? I have prepared a new presentation. वापस देखो, मैं इधर गया फिर मैं वापस आया, like जैसे था ना, इधर एंड वापस आना है. एक नई प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए. सिंपल. for the meeting, and boom, I have written the correct sentence. How many of you guys loved it? मजा आया? कुछ दिमाग हिला? Yes or no? How simple is it? समझ में आया? How many of you guys can relate with it? नहीं आया समझ में? I'll explain it one more time. Interesting.
क्या इसके लिए आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो। वंस बिकॉज प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आप लोगों को यही नहीं पता होता भाई सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करें। यस और नो? यही नहीं पता होता कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है। एज यू हैव नो आइडिया, बट डू यू गाइस एग्री कि रूट ऑफ द सेंटेंस से ना, एक बार ये रूट से ये पता लग जाता है कि ओ वाओ, अच्छा सेंटेंस इतना ही है, अच्छा बस इतना ही बोलना है, मैंने प्रिपेयर करी है, फिर वापस का जितना भी स्टफ बच गया, वी जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन द सीक्वेंस वन मोर टाइम। आई विल रिपीट इट। ओके चलो आप इसको समझना। देखो, मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है, दिस इज द सेंटेंस। हाउ आई डिड इट, वेरी सिंपल। मैंने, अब आप देखना लॉजिक, मैंने प्रिपेयर करी है, सो ये मैंने सबसे पहला अपना रूट सेंटेंस सॉल्व किया। आई हैव प्रिपेयर्ड, डन। इतना समझ में आया? ब्लैक एंड ब्लैक समझ में आया? नाउ एक नई प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन, हियर वी गो। अब यहां पे मैंने लिख दिया अ न्यू प्रेजेंटेशन। नाउ लेट मी चेंज द कलर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। राइट, लेट मी चेंज द कलर एंड एक्सप्लेन यू। मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए, फॉर द मीटिंग, द इंटायर सेंटेंस हैज बीन कवर्ड। आप लोगों का एक पेन ये भी होता होगा कि व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग ना, स्टार्ट तो आप कर देते हो, पर आपको फिर ये समझ में नहीं आता अ न्यू प्रेजेंटेशन इधर लगाऊं, फॉर द मीटिंग इधर लगाऊं। बट विद दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द डी टेक्निक व्हिच शोज यू जस्ट नीड टू ऐसे गो लाइक दिस एंड यू जस्ट हैव टू कम बैक लाइक दिस। विद दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर यू कैन किल any kind of sentence at your will। आया समझ में? How many of you guys loved it? And don't worry about it। कुछ लोग कह रहे हैं ये have कैसे आया and all that, अभी उसकी टेंशन मत लो। लैंग्वेज के डीएनए को समझो पहले, ये बीच की बातें बाद में सीखेंगे, पहले डीएनए तो समझो। अब मुझे पता ही नहीं स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं हैव का क्या करूंगा? डोंट वरी अबाउट इट, वो 2 मिनट का लॉजिक है, समझा दूंगा। समझ में आया? Now let's practice one more thing। You guys need other examples? Oh, I have so many examples। Look, this particular long sentence, and look at my speed, how quickly I'll be doing it। Right? सब लोगों को ये चीज समझ में आई है? अभी मैं आप लोगों को नोट्स भी लाइक आई आस्क यू। देखो, रात सर एंड प्रिया मैम कल सुबह लंदन के लिए मेरे साथ फ्लाइट लेंगे। अब बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, आई जस्ट हैव टू राइट। लुक, रात सर एंड प्रिया मैम फ्लाइट लेंगे। डू यू गाइस एग्री? इट्स अ कंप्लीट डी टेक्निक लगा दी मैंने। अब नाउ आई स्टार्ट इवन राइटिंग इट ना। रात सर एंड प्रिया प्रिया मैम विल विल टेक फ्लाइट। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डी टेक्निक को लगाया। अब आई जस्ट हैव टू कम बैक, वेरी सिंपल। मेरे साथ की इंग्लिश वुड बी विद मी। वाओ, लंदन के लिए, फॉर लंदन, राइट, कल सुबह। You guys know that English, yeah? Tomorrow morning, home। This is the way you write correct English। Khatam। Loved it? मजा आया? You guys understood the sequence of the language। अब तुम्हें यही बताओ, 25 साल से तुम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं and you guys have no idea about this। How come you will be able to become fluent in English? हुआ? तुम्हारे 20 साल को पीछे छोड़ दिया। How many of you guys felt that wow moment आया? क्योंकि जब तक हमें टेक्निक्स नहीं पता, हम लोग वही ग्रामर रूल्स में उलझे हुए हैं। बाहर निकलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज द वे, दिस इज गोइंग टू बी द वे। 2020-24 में इंडिया is going to master English। How many of you guys are ready? How many of you guys are ready to become fluent in the year 2024? One more sentence, it's awesome। अभी तो तुम देखना, आज what if I tell you कि आज तुम लोग ग्रामर में सही नहीं हो, मैं आपको बताऊंगा। आज मैं तुम्हारे ग्रामर की एक्चुअल प्रॉब्लम बता दूंगा और कल सोल्यूशन भी। इट्स गोइंग टू बी वाओ। एक और सेंटेंस करते हैं, देन वी गाइस आर गोइंग टू मूव अहेड। देखो, मैं तुम्हें जस्टिस देने के बाद रेस्ट लूंगा। मैं हम यू नो वी ट्रेन लॉट ऑफ एडवोकेट्स। कोई है यहाँ पे? राइट कोई है? एडवोकेट्स हैं यहाँ पे लाइक तो मेरे पास ना बहुत सारे एडवोकेट्स आते हैं, बिकॉज आपको पता है लाइक लॉ फर्म में इंग्लिश इज द की। यस और नो? सो वहां पे ना उन्होंने कहा यार अमन, मैं वैसे तो कोई भी केस लड़ सकता हूं, मुझे बहुत इंग्लिश आती है, पर कभी कभार ना लाइक टाइम अगर मिले तो मैं कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिख लेता हूं, पर जल्दी से जल्दी अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना पड़े ना, तो मैं नहीं लिख पाता। मैंने कहा अच्छा यार, अब एक एग्जांपल दो। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, मैं तुम्हें जस्टिस देने के बाद रेस्ट लूंगा। तो कह रहे मैं ना समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे लिखूं। मैंने कहा यार डी टेक्निक सिंपल लगाओ ना, मैं रेस्ट लूंगा। अब देखो, आई स्टार्ट राइटिंग।
I will take rest. Right? I will take rest. अब ये देखो, जस्टिस देने के बाद या फिर मैं रेस्ट लूंगा जस्टिस देने के बाद, लाइक आफ्टर, लाइक देने के बाद वुड बी आफ्टर, आफ्टर गिविंग, आफ्टर गिविंग। अब जस्टिस को सॉल्व करते हैं। आप ये देखो ना, मैं रेस्ट लूंगा, आई विल टेक रेस्ट, देने के बाद, आफ्टर गिविंग, राइट, जस्टिस। तो ठीक है, जस्टिस वर्ड लिख लेते हैं। इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, तुम्हें, राइट, आफ्टर गिविंग जस्टिस टू यू, बस, द सॉल्ट, दिस इज द वे, डन। आया समझ में? मतलब गाइज, कितने लोग एग्री करेंगे कि इस टेक्निक से आ जाने से ना अब आप लोगों का खुद मन कर रहा होगा, अमन गिव मी मोर सेंटेंसेस, आई विल डू। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? कितने लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हाँ अमन मुझे देना? कितने लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा वाटर टैंक भरने लग गया अब? हाँ या ना? पता लगा वाटर टैंक भरने का लॉजिक, पता लगा? थोड़ा वाटर टैंक कितना हुआ क्या, मुझे बताओ? वाटर टैंक कितना भरा? यस और नो? दिस पोर्शन हैज बीन डन। How many of you guys now are excited to fill it completely? Yes or no? It's going to be so simple. Problem is not here. Problem is here. So इसको ही सॉल्व करते हैं, ये चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। Yes or no? जिसको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, यू गाइस विल गेट द आइडिया। बट ऑल एंड ऑल, एक तो चीज, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी गाइस नीड टू कवर अप इन दिस इंटायर वर्कशॉप, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूंगा, बट कितने लोगों को डी टेक्निक समझ में आई है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट? चलो अब नोट्स बनाओ क्विकली गाइस। एंड आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड इट फॉर यू, कि मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं, मैं लाया हूं, आई हैव ब्रॉट एक नया लैपटॉप, अ न्यू लैपटॉप रवि सर के लिए, फॉर रवि सर। एंड ये तो अभी एक टेक्निक है, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स वाया विच यू कैन इजिली मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज में ग्रामर रूल्स नहीं पढ़ने, टेक्निक्स को फॉलो करना है। क्योंकि कितने लोग एग्री करते हैं कि तुम लोगों के पास पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? चलो मैं साइड हो जाता हूं, चलो चलो ले लो। इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड इवन व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, चलो सब लोग नोट्स बना रहे हैं, एवरीवन इज मेकिंग नोट्स, राइट? थोड़ा दिमाग हिला। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव गॉटन दिस बूम आइडिया? वाओ यार, ये तो इतना इजी है, राइट? दिमाग हिला। चलो ये वाला लिख लो, टू मेक माई सेंटेंस करेक्ट। ये आप, यू गाइस कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3 स्लाइड्स ऑल्सो। एवरीवन क्विकली टेक द, ये मैं नोट्स बना रहा हूं आपके, मुझे पता था कि तुम लोग खुद नहीं लिखोगे, तो नोट्स आर देयर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पर्टिकुलर नोट्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को ये भी पता लगे कि अभी तक मैंने आपको 3 चीजें सिखा दी हैं, दैट इज व्हाट इट इज। एंड दैट बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो ये लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है लिखो उसको अपने हाथों से, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेके तुमने कुछ नहीं करना। द पॉइंट इज, इफ यू गाइस आर सीरियस, राइट इट डाउन। इट डजंट मैटर यू आर एन इंजीनियर, होम मेकर, you are from the accounting field, just make it happen, done। नो पीडीएफ नहीं मिलने वाली, तो हाथ से थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है? डन? आया समझ में? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग इट, बाय द वे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? चलो नाउ गाइस, डी टेक्निक तो समझ में आ गई है, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड सेंस। अब टाइम एंड सेंस का कंसेप्ट समझने से पहले ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि जरूरत क्या है। अब डी टेक्निक आ तो गई, अब जरूरत क्या है? नाउ कितने लोग ऐसे हैं ना, वो ये समझना चाहते हैं कि अमन मुझे टेक्निक समझ में आ गई है, दिस वाज द टेक्निक ना, दैट अमन मुझे टेक्निक समझ में आ गई है, बट नाउ आई वुड लव टू नो कि यहाँ पे हैव क्यों आया। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो कि यार अमन यहाँ पे विल क्यों आया? आई वुड लव टू नो। यार यहाँ पे विल टेक क्यों आया? यहाँ पे आफ्टर गिविंग क्यों आया? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू डाइव डीप? कितने लोग लाइक डाइव करना चाहते हैं? राइट, आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो कि यार अच्छा मुझे बताओ, डी टेक्निक तो समझ में आ गई है, पर ये चीजें लिखते कैसे हैं यार? पता लग गया कौन सी चीज कब लिखनी है, बट अब ना हर एक ब्लॉक की दिक्कत को दूर करते हैं, बिकॉज यू गाइस एग्री ना? ब्लॉक तो पता लग गया, दिस इज अ ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3, बट अब ना इस ब्लॉक नंबर 1 के अंदर घुसते हैं कि ये आई हैव प्रिपेयर्ड क्यों आया, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो दैट डीप? चलो चैट्स को बंद रखते हैं, अब डीप चलते हैं गाइस। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस, द मोस्ट easiest concept, and I like I feel so bad
कि जब मैं इंग्लिश टीचर्स को देखता हूं हमारे इंडिया में स्कूल्स में टीचर्स में, कि वो इंग्लिश को अभी भी उस वे से पढ़ा रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश को ऑब्वियसली अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था एंड ऑल दैट स्टफ, तो जो मेथड्स वो छोड़ के गए थे ना, अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं। हाउ बुलशिट इज दिस, यस और नो? जो अंग्रेज छोड़ गए हम वही ये वही कोई एजुकेशन सिस्टम यू गाइस नो एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? बट नाउ द मैजिक, मैजिक सुनोगे? अच्छा, तुम लोगों के पास मुझे ऑनेस्टली बताना, कितने लोग इंग्लिश को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक इमेज है कि यार जो ग्रामर की बुक होती है वो इतनी मोटी होती है, एंड जब तक मैं ये ग्रामर रूल्स याद नहीं करूंगा आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। मुझे बताओ कितने लोगों का ये लिमिटेड माइंडसेट है? हाँ या ना? दिक्कत है ना यार? ऐसा लगता है कि यार ये इतनी ग्रामर की बुक्स हैं, अब मुझे तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, यस और नो? पर अगर मैं ये ग्रामर पढ़ूंगा नहीं तो मैं सही कैसे बोलूंगा? आपको इस पर्टिकुलर माइंडसेट से बाहर निकलना है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं यार। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस स्पीक हिंदी ओवर हियर? मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सही हिंदी में बात कर रहा हूं, राइट? बट डू यू गाइस एग्री कि हम लोग हिंदी में जो बात करते हैं, हम एक्चुअली कॉन्वर्सेशनल हिंदी यूज करते हैं? जो एक्चुअल व्याकरण वाली हिंदी है उसकी एक्चुअल समझ हम लोगों को नहीं है, हाँ या ना? यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे कि यार हिंदी की ना जो व्याकरण वाली नॉलेज है ना वो हमें नहीं है, पर फिर भी हम जिस तरीके से कॉन्वर्सेशनल हिंदी वी गाइस आर स्पीकिंग, दैट इज मोर देन इनफ। ऑफिस में भी अगर मुझे हिंदी में बात करनी होती है तो मैं ऐसे ही करता हूं, हाँ थोड़ा सर, ओके सर, थोड़ा रिस्पेक्टफुल टोन आ जाती है, बट ये हिंदी मेरी वर्क करती है। सेम लॉजिक गोज विद इंग्लिश लैंग्वेज। प्रॉब्लम ये है कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज की ना व्याकरण में ज्यादा घुसते हो। वही रीजन है कि तुम्हें अपने अंदर डेली ग्रोथ फील नहीं होती। एज डेली ग्रोथ फील नहीं होती तो तुम गिव अप कर देते हो। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, डू यू गाइस वांट टू सी वन मैजिक? एक मैजिक देखोगे? मैजिक पता है क्या है? कि वी रिसर्च्ड ओवर 4 to 5 years, राइट? 4 से 5 साल, बिकॉज आई बीन ट्रेनिंग पीपल इन इंग्लिश फॉर द पास्ट 7 years नाउ। एंड इन 7 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जहां पे मैंने इंग्लिश के ऊपर रिसर्च ना की हो, इंग्लिश के बारे में ना सोचा हो एंड ऑल दैट। तो पता है मैं आपको एक सिंपल फंडा बताऊं, कितने लोग अपनी ग्रामर को बहुत ही जल्दी से जल्दी मास्टर करना चाहते हैं? मुझे बताओ, हाँ या ना? मुझे बताओ कितने लोग करना चाहते हैं? डी टेक्निक तो तुम्हें समझ में आ गई है। कितने लोग अपने ग्रामर को बिल्कुल फुल ऑन मास्टर करना चाहते हैं? यस और नो? मुझे बताओ। सब लोग, राइट? ऑलमोस्ट सब लोग। चैट्स को बंद कर दो। मैं व्हाट इफ आई टेल यू, आपको पता है मैं आपको एक टेक्निक बताऊं। टेक्निक इज कि आप इस दुनिया का ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट है, आपको किसी भी कंसेप्ट को करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, वो सारे के सारे कंसेप्ट, चाहे आप टेंसेस की बात करो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात करो, एंड वो क्या होता है, नरेशन होती है, एक्टिव पैसिव, एक जो भी कंसेप्ट्स हैं, इन किसी भी कंसेप्ट्स को करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे कंसेप्ट्स सिर्फ दो ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, एंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज टाइम एंड सेंस। बिकॉज अगर आप लोगों की लैंग्वेज को लेके आप लोगों का टाइम एंड सेंस गलत है, इसलिए आपको लगता है कि आपको ग्रामर में इश्यू है। व्हाट इफ आई टेल यू, अ पर्सन हु हैज अ ग्रेट नॉलेज और अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड सेंस, एक बार आपको टाइम एंड सेंस समझ में आ जाता है, उसके बाद आपको कोई ग्रामर रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये तुम्हारी तरह वो यूट्यूब पे रूल्स पढ़ रहे हैं? हाँ, कि वो टेंसेस पढ़ रहे हैं? नो, दैट्स नॉट द वे। बट स्टिल वेन एवर दे स्पीक, क्योंकि ग्रामर सीखने का मेन लॉजिक क्या है कि मैं सही बोलूं, तो आप सही विदाउट ग्रामर के भी बोल सकते हो। आपको पता है कैसे? जस्ट मेकिंग योर डी टेक्निक स्ट्रॉन्गर एंड अपना टाइम एंड सेंस स्ट्रॉन्ग करना। समझ में आई ये वाली चीज? कि ग्रामर, अब आप इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं कहता हूं कि यार आप क्यों नहीं सीख रहे? यार बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं कहता हूं क्यों? कह रहे यार ग्रामर की इतनी बुक दे दी है मेरे इंस्टीट्यूट ने, मैं वही पढ़ता जा रहा हूं। दिस इज नॉट द वे। सबको ये चीज समझ में आई है? इसको लिखो फटाफट, सब लोग फटाफट लिखो ये जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है। ग्रामर इज नथिंग, English is just the combination of time and sense. And maximum people make mistakes in time and sense. कभी आपने सोचा है? मैं अभी आपको बताऊंगा भी सही, but quickly guys, write it down. अभी I'll giving you so many examples of these. Don't worry. पहले थोड़ा समझो तो सही. Examples के पीछे ज्यादा मत भागो. आया? सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट टेकन और इसको लिखो। स्क्रीनशॉट अगर लोगे, मैं एक वो करूं, लेट मी गिव यू वन फाइनल वार्निंग।
जितने भी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, वो इन स्क्रीनशॉट्स को अपनी जिंदगी में कभी पढ़ेंगे ही नहीं। तो स्क्रीनशॉट मत लो, क्या करो, इसको अपने नोटबुक पे लिखो, शायद थोड़ा आप लोगों को समझ में आए। मूविंग अहेड, चलो नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड। गाइस देखो, इन शॉर्ट बात पता है क्या है? इंग्लिश को सुधारना है, डी टेक्निक करो, टाइम एंड सेंस सुधारो। अब टाइम एंड सेंस को कैसे सुधारना है उसको समझते हैं। पहली चीज क्या है कि टाइम तुम्हें ऑलरेडी पता है, टाइम सबको पता है ना, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, राइट? ये पता है ना तुम्हें? मैं तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लूंगा एंड देन विल डू इट। और सेंस क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं, दिस इज द वे, बूम, राइट? चलो, इस दुनिया में बस यही कंसेप्ट्स हैं इंग्लिश को लेके। वंस यू मास्टर दिस, योर एंटायर ग्रामर इज ओके। अब ना टाइम तुम्हें पता है कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। पर मुझे आप फटाफट बताओ, ये सेंटेंसेस हैं, इनका मुझे टाइम बताओ फटाफट। फटाफट टाइम बताओ एवरीवन, क्विकली, फर्स्ट सेंटेंस। हम सब मिलकर ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, इंग्लिश बात पे आएंगे, पहले टाइम। आई रियली वांट टू नो दैट वेदर यू गाइस आर ग्रेट इन टाइम और नॉट। पहला सेंटेंस क्या है? फटाफट बताओ। ग्रेट, फ्यूचर, आगे बढ़ते हैं। सर आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे। सेकंड सेंटेंस क्या है? एवरीवन क्विकली गिव मी द आंसर ऑफ द सेकंड सेंटेंस। फटाफट मुझे बताओ सेकंड सेंटेंस। मेक सेंस? फ्यूचर है, प्रेजेंट लग रहा है? मुझे बताओ। इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट, राइट? इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट। थर्ड सेंटेंस क्या है? उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ व्हाट? इट्स अ क्लियर केस ऑफ प्रेजेंट। प्रॉब्लम पता है क्या है? डू यू गाइस एग्री? आप में से कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आपको बोलना था आई वॉज आई वॉज राइटिंग यू एन ईमेल, और आपके मुंह से निकल गया आई एम राइटिंग? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बात करनी थी फ्यूचर की बट बात कर दी पास्ट की? ऐसा कभी हुआ है? और फिर आपने सोचा हो यार मेरी तो ग्रामर में मिस्टेक कर देता हूं। नो, गलती कहां हो रही है? टाइम की। आया समझ में? ग्रामर इज नॉट द इशू, टाइम एंड सेंस इज द इशू। समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइम, व्हाट इफ आई टेल यू, जो टाइम होता है वो 90% लोगों का सही होता है। टाइम 90% लोगों का सही होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि इन क्वेश्चंस के मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिए होंगे। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम 20 साल से इंग्लिश सीख रहे हो थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं से, यूट्यूब से एंड ऑल दैट, तो तुम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट सही है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो टाइम तुम सब लोगों का सही है कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। दिक्कत होती है सेंस में, और ये 90% लोगों का गलत होता है। आई एम राइटिंग इट, 90% people have the wrong perception about the sense, and that's the only reason why you guys are wrong in English. Guys, आप इस चीज को समझना। अगर मैं आपके वाटर टैंक की बात करूं ना, इधर आओ एवरीवन, क्विकली कम। मैं आपको बताता हूं इंग्लिश लैंग्वेज का किस तरीके से आपका वाटर टैंक फेल होता है। इधर देखो, राइट, राइट। ये जो पर्टिकुलर, अब आप देखना कि दिस इज व्हाट, अब आप इस चीज को समझना इस तरीके से। अगर ये वाला वाटर टैंक आपके टाइम का कंसेप्ट है ना, तो ये सेंस का है। सेंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। लोगों का टाइम सही होता है तो वो थोड़ा आई एम कर लेते हैं, बट सेंस में गलती करते हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं निकल पाती। ये मेजर प्रॉब्लम है, और आज हम इसी को ही, आज या कल में हम अपनी सेंस को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर ऊपर चीजें आती हैं। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, मैं आपके वोकैब की बात करूं, दिस इज द इंटायर एरिया ऑफ योर ब्रेन। एंड फिर आती है आपकी सो कॉल्ड प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली यही करना चाहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे पहले बेस सुधरता है, फिर प्रैक्टिस होती है। दिमाग खुल रहा है, धीरे धीरे सबका दिमाग खुल रहा है, लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि व्हाट्स द फंडा, राइट? दिमाग में टाइम सबका सही होता है ऑलमोस्ट। चलो सेंस की बात करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। योर टाइम इज वे टू मच इंपॉर्टेंट, फटाफट आओ, राइट? ठीक है, इधर देखो, टाइम सबका सही है। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट अपॉन सेंस। देखो गाइस, सबसे पहले वी विल वर्क अपॉन सेंस। ना तीन तरीके की होती है। सेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीखो। सेंस मतलब होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को बोल के या सुन के what you exactly feel, feeling मतलब समझते हो? Let's suppose you guys are listening to me. How many of you guys are feeling energetic? मुझे बताओ, how many of you guys are feeling energetic मुझे सुनने के बाद? तो ये क्या हुआ? ये फीलिंग हुई ना। कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो वो बोरिंग क्या हुआ, वो भी फील हुआ, राइट? पर बोर क्यों हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो छोड़ के जाओ। छोड़ के नहीं जा रहे क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसे कैसे? हाँ राइट। Whatever you guys are feeling, you guys are getting bored or you guys are getting wow feeling, क्या है वो? क्या वो एक फील है। फील मतलब एक वाइब है। तो हर सेंटेंस की फील, इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरीके की फीलिंग होती है। द फर्स्ट फीलिंग इज, अब स्टार्टिंग में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी,
कितने लोगों को कॉन्टिन्यूटी का मतलब पता है? वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। कॉन्टिन्यूटी का मतलब समथिंग इज नोन एज लगातार। फटाफट समझो यार, ये बहुत ही, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तभी तुम इतना रो रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में। बेसिक्स क्लियर करो, आपको कॉन्फिडेंस आज से ही आने लग जाएगा, दैट्स माय गारंटी। और कल आओगे, कल तो यू गाइज हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। यू गाइज विल फील कि आप एक बहुत ही जीनियस इन्वायरमेंट में आए हो। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। देखो, सबसे पहले क्या चीज आती है, कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मीन्स समथिंग विच इज हैपनिंग इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, राइट? आपको लगता है कि आप सेंस में, अच्छा, मैं अगर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा, पता लगा लोगे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है? चलो लगाओ, मुझे बताओ, इन दोनों सेंटेंसेस में चैट्स को ओपन कर दो, क्या ये वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी है? कॉन्टिन्यूटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, सी डॉट 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 डॉट। मुझे फटाफट बताओ, पहला सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी है? ऐसे लिखो, फर्स्ट यस। अच्छा, पहला है, पहला है क्या? एवरीवन पे कर दो, कोई बात नहीं, पहला है, ओके, चलो ठीक है। सेकंड है क्या? सेकंड है, सेकंड है, ध्यान से पढ़ो। यू गाइस वांट मी टू रिपीट? मैं आपको डायरेक्ट फ्लुएंसी की गाइडेंस दे रहा हूं। मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। सेकंड है क्या? समवन इज सेइंग नहीं है, कोई कह रहा है बोथ है। देखा, हो गया ना कंफ्यूज्ड? आधा इंडिया कह रहा है नहीं है, आधा इंडिया कह रहा है मतलब क्या हुआ? सेंस में दिक्कत है, देखो पकड़ी गई ना दिक्कत, आप खुद देख लो। आधे लोग कह रहे हैं नो, आधे लोग कह रहे हैं यस, मतलब क्या हुआ? अब आंसर दोनों तो सही होंगे नहीं, लोचा है ना। विल सॉल्व दिस लोचा, चैट्स को बंद करो। पहली चीज क्या है, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। करेक्ट आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे आप एक बात बताओ, जितने भी लोगों ने आंसर नो दिया है, कितने लोगों ने आंसर नो दिया है? कितने लोगों ने आंसर नो दिया कि यार ये नहीं है, ये नहीं है कॉन्टिन्यूटी? कितने लोगों ने नो दिया है? ग्रेट। आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर मैं, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सेंटेंस ये होता कि मैं अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी होता? मुझे बताओ, लेट मी नो। अगर ये सेंटेंस ये होता कि मैं अपने जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या ये कंटिन्यू होता? या मैक्सिमम पीपल आर सेइंग यस, है ना, कि कंटिन्यूटी होता। पर मैंने फिर चेंज ही क्या किया, मैंने ये लिख दिया कि मैं कल जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। फिर आपने कह दिया कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कंटिन्यूटी है ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अब समझना, इधर देखो, इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि तुम्हारे दिमाग में ना कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है कि जो चीज अभी हो रही है ना, वही कॉन्टिन्यूटी है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, वही ना सेंस की दिक्कत है, देखो आ गई ना। और कॉन्टिन्यूटी तो बहुत इजी होता है, वही दिक्कत है, तो इंग्लिश तो गई। अब सीखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एंड दिस इज द मिस्टेक जो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कर रहा है, वो पूरी डॉक्टरी कर चुका है, राइट? ही हैज डन, इवन एमबीबीएस पीपल आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स। सो आप लोग तो फिर भी, यू गाइस आर वे टू मच अभी पीछे हो, हाँ या ना? अब आप समझो, प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें पता है क्या लगता है? अरे वाह 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 वाह, कॉन्टिन्यूटी 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 मतलब लगातार। अब तुम्हें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहली चीज लर्निंग, पता है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, यस, ये सेंटेंस भी कॉन्टिन्यूटी है और ये भी कॉन्टिन्यूटी है, दोनों सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी के हैं। तो जितने भी लोगों ने दोनों यस बोले हैं, यू गाइस आर राइट। पर जितने लोगों ने ये वाला आंसर नो बोला है, उनको मेरी एक बात समझनी है, पहला लॉजिक समझो, एवरीवन क्विकली। ये दो लॉजिक्स है ना इंग्लिश के तुम्हारे, टाइम एंड सेंस। पहली चीज याद रखना, पहली चीज याद रखना, टाइम का एंड सेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता। आया समझ में? रूल नंबर वन, इट्स वे टू मच इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। टाइम का एंड सेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता, पर तुम्हारे दिमाग में वो कनेक्शन बैठा हुआ है। काटो उसको आज, इसको। आया? एवरीवन टेक आउट द सीजर, फटाफट निकालो सीजर, यही हाथों वाली निकाल लो, एंड कट इट डाउन। क्या कट इट डाउन? आप लोगों को ये लगता है, पता है आपके दिमाग में क्या है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कॉन्टिन्यूटी का, किसी भी सेंस का, किसी भी सेंस का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। सेंस अलग है, टाइम अलग है। कनेक्शन, इसको ब्रेक करो। लेट्स ब्रेक दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। दिस थिंग शुड बी, ये ब्रेक करो, कनेक्शन ब्रेक करो पहले, ठीक है? नो कनेक्शन, ठीक है? कनेक्शन ब्रेक हुआ, ब्रेक इट, यहां पे लिख दो ब्रेक इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा लॉजिक समझना, देखो,
आज फ्राइडे है, मैं पानी पी रहा हूँ, राइट, लेट मी ड्रिंक इट वाटर वैसे भी, राइट, तुम लोग तो पी रहे होंगे, मुझे तो पीने दो। अब अभी मैं पानी पी रहा हूं, द वाटर इज मूविंग, यस और नो? दिस इज द क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? गाइस जिन लोगों ने नो आंसर लिखा था, कॉन्टिन्यूटी का है, ग्रेट। अब मान लो आप कल आते हो सैटरडे को और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, हे राजीव, राजीव भाई आपको याद है मैं कल फ्राइडे को पानी पी रहा था। अरे एक्शन तो फिर भी कॉन्टिन्यूटी का हुआ ना, टाइम पास का हो गया, पर बॉटल तो फिर भी मूविंग थी ना। आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? कॉन्टिन्यूटी कैन बी ऑफ प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी ऑल्सो, पास की भी ऑल्सो, एंड फ्यूचर की भी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 2011 वर्ल्ड कप, मैं आपको बोल रहा हूं यार, राजीव भाई आपको याद है यार क्या महेंद्र सिंह धोनी छक्के मार रहा था, ये कॉन्टिन्यूटी है। पास किए तो क्या हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं। कॉन्टिन्यूटी इज कॉन्टिन्यूटी, चाहे वो पास की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? इस रीजन की वजह से ये गलती करते हो यार तुम लोग। पता है क्या होता है, मैं दिल से एक तुम्हें बात बताऊं, यू गाइस आर रेडी टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश लैंग्वेज इन 2024। दिमाग खोल के सुनो, ये 6 कंसेप्ट्स हैं, टाइम तुम्हारा ऑलरेडी सही है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ये 3 कंसेप्ट सुधारने हैं। मार्क माय वर्ड्स, यू कैन बिकम द मास्टर इन टर्म्स ऑफ ग्रामर इन जस्ट 20 मिनट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। थोड़ा कॉमन सेंस लगानी है, जैसे हिंदी में लगाते हो वही लगानी है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या होता है, अब आप मेरी बात सुनना और आप मुझे लॉजिकल बताना। ये वाला सेंटेंस है, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। आप में से जिस किसी को भी ये लगता है कि ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, अगर तुम्हें लगता है कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो तुम इंग्लिश सेंटेंस गलत बोलते। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? जिस इंसान को ये सेंटेंस ही कॉन्टिन्यूटी का नहीं लग रहा, वो कोई और लॉजिक लगाता, वो कोई और दिमाग लगाता, और जब वो यहीं पे गलत हो गया, he can never become fluent in English. He can never become fluent in English. Even he will be a wrong speaker. And wrong speakers की कोई जगह नहीं है। तुम में से हर कोई बोलना चाहता है या सही बोलना चाहता है? सही बोलना चाहता है। आया समझ में? Yes or no? दिमाग खुला ना? So both the cases are of what? Both the cases are of continuity. समझ में आया ना? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कॉन्टिन्यूटी। थोड़ा बहुत समझ में आया, डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ऊपर ऊपर से बढ़ा रहा हूं, फिर विल गो मोर डीप। अब कितने लोगों को मजा आ रहा है? पहले डी टेक्निक सीखी, फिर थोड़ा और डीप गए, टाइम एंड सेंस सीख रहे हैं, फिर और डीप जाएंगे, फॉर्मेशन शीट सीखेंगे, खत्म इंग्लिश। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू फील दैट पर्टिकुलर वाइब, कनेक्शन एंड दैट पर्टिकुलर फीलिंग की वाओ यार आज पहली बार कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? यू गाइस आर एबल टू कनेक्ट विद मी? सब लोग कर पा रहे हैं? आई लव यू गाइस, लेट्स फोकस मोर ऑन दैट। राइट, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी समझ में आया। नाउ अब ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ो ना तो ऐसा लगता है काम खत्म हो गया है यार, वही कंप्लीटेड होते हैं। कंप्लीटेड तो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। कंप्लीटेड, I am explaining you the second concept now, which is the clear case of completed. Completed basically means I read a sentence and I feel कि ये तो काम खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको मेल सेंड कर दी थी, किसकी फीलिंग आ रही है? काम खत्म हो गया यार, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, काम खत्म हो गया। तो दिस वुड बी द क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। ये ऑलमोस्ट सब लोग सही जज कर लेते हैं। मैं यूट्यूब पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देखकर थक चुका हूं। कितने लोग हैं वैसे ऐसे जो ऐसे थक चुके हैं? मैं यूट्यूब पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देख के थक चुका हूं, राइट? जब थक चुका हूं ना, अब तो यू गाइस, व्हाट यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ, दिस इज कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूटी है। पर जो तुम यूट्यूब पे वीडियोस देख के थक चुके हो, कंप्लीटेड हो गया ना वो, थक चुके हो अब क्या। दिस इज द क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड एज वेल। देखा? सेंस समझ में आ रही है ना? अब जिस इंसान को ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का लग रहा है, वो इंग्लिश में कभी भी फ्लुएंट नहीं हो पाएगा। देखा, जड़ पता लगी? फ्लुएंट होना है तो टाइम एंड सेंस इज द की। मैक्सिमम पीपल, इवन द इंजीनियर्स, होम मेकर्स, लॉयर्स, मैं जब उनकी इंग्लिश चेक करता हूं, जब वो बोलते हैं, 1 सेकंड में पता लग जाता है इस बंदे को सेंस की दिक्कत है, इस बंदे को टाइम की दिक्कत है। मैक्सिमम प्रॉब्लम सेंस की ही होती है, और डी टेक्निक भी लोगों को लगानी नहीं आती है। अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो कि मुझे ये नहीं आता, तभी इंप्रूव करोगे। आ रहा है ना समझ में? यस और नो? नाउ अब ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं गाइस, जो ना मुझे कंप्लीटेड की फीलिंग देते हैं ना कॉन्टिन्यूटी के। तो जो सेंटेंसेस ना कंप्लीटेड है ना कॉन्टिन्यूटी है, ऑब्वियसली वो सिंपल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं, विजय सर कंपनी के न्यूली प्रमोटेड टीम लीडर हैं। इट्स अ सिंपल सेंटेंस एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। काफी सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, सिंपल में एंड कंप्लीटेड में।
ये डिफरेंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल, कि हाउ टू फिगर इट आउट कि सेंटेंस सिंपल है या कंप्लीटेड है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आसान होता है कि मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं मेल सेंड कर रहा हूं, मैं रोहन को पिक कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी इज सिंपल, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब आप देखना, these three things are easy, right? Continuity is a medium concept, right? लोगों को, कुछ लोगों को आता है या नहीं आता। Simple, simple and completed. This is this is one of, I won't say tough है, but ये बहुत ही, this is the actual problem of the India। जितना मैंने स्टडी किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की यही है। ये आपको समझ में आना, ये इजी है, ये मीडियम है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सबको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, क्रिटिकल वुड बी द राइट वर्ड। सबको समझ में आ रहा है? रजत, मेरी आवाज आ रही है? ओके ग्रेट, मुझे यहाँ पे आना बंद हो गई है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, सबको ये चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? इजी। नाउ लेट्स मूव अहेड लाइक अ गेम। अब व्हाट वी हैव डन फॉर यू, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब जैसे एक सेंटेंस है, मैं, नाउ इट्स ऑल ओके, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा था। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट्स द टाइम। चलो फटाफट बताओ, ऑब्वियसली टाइम बताओ सब लोग, सबसे पहले टाइम बताओ। टाइम एक ही होगा, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ व्हाट? पास्ट। अब पास्ट में व्हाट वुड बी द सिनेरियो, राइट? क्योंकि अब आप मुझे बताओ सेंस क्या होगी। अब आपने इस सेंटेंस में ये तो जज कर लिया कि पास्ट है, अब सेंस जज करो। ये सेंटेंस सिंपल क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटेड क्या है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ, एब्सोल्युटली इट्स अ क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वही वाला एग्जांपल करने जा रहा था। अब समझ में आया ना कॉन्टिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी। समझ में आया? यस और नो? थोड़ा पता लगा लॉजिक? क्योंकि जहां पे भी तुमने टाइम एंड सेंस में गलती की, द सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। अभी हम लोग इनकी इंग्लिश बनाएंगे, डोंट वरी। इंग्लिश बनाने की ना जल्दी सब लोग करते हैं, पर वही बात है ना, इधर देखो, वाटर टैंक पे आओ, इधर देखो, इधर देखो। सब लोग ना एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, दे जस्ट वांट टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश क्विकली। उनको ये लगता है यार मैं फटाफट इंग्लिश बोल लूं, पर गाइज हैव पेशेंस। पहले टाइम सुधर जाए, सेंस सुधर जाए, फिर दो तीन चीजें और होती हैं। जब ये वाटर टैंक फिल हो जाएगा, फिर जिंदगी भर करते रहना इंग्लिश। लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी नॉलेज इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, नॉट अ गुड आइडिया। कोई बात नहीं, समझ में आया? इजी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? मजा आ रहा है? यस और नो? इजी, समझ में आया ना? नाउ व्हाट आई हैव डन फॉर यू, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक। टी टेक्निक पढ़ा, वाटर टैंक प्रिंसिपल पढ़ा, एंड इवन टाइम एंड सेंस को पढ़ा। इस चीज को नोट डाउन करो फटाफट गाइस, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, बिकॉज दीज थिंग्स आर वे टू मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपके पूरे लैंग्वेज के फंडे को ये सारी की सारी चीजें क्लियर करती है। एवरीवन क्विकली, हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस सो फार? आई नो यू गाइस आर लविंग इट, सो एम आई। फटाफट गाइस, सब लोगों का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। केबीसी अब थोड़ा सा खेलते हैं, राइट? राइट, ओके, गिव मी अ मिनट। चलो, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार, इसका भी आप, यू गाइस कैन ड्रॉ इट, लाइक यू गाइस कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन योर पेपर, या फिर आप इसको लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वाला, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। वैसे I7 भी हमने कवर अप कर लिया है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, all these particular six things what we have understood so far, it is way too much important, either you are a beginner or from the intermediate level। because अगर तुम्हारा फटाफट, biggest mistake, मेरा ब्रेन खाली है, मुझे इंग्लिश को करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए स्टार्ट आना चाहिए, फिनिश आना चाहिए। स्टार्ट के लिए डी टेक्निक, एंड ग्रामर क्या है, कॉम्बिनेशन है टाइम एंड सेंस का। और टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सेंस का मतलब होता है सिंपल कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट टाइम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। हुआ? रिवाइज हुआ? दिस इज व्हाट वी गाइस हैव डन। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी, इजी, कोई इशू तो नहीं है? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू प्ले अ गेम विद मी, राइट? एंड दिस थिंग इज नोन एज फॉर्मेशंस गेम। बिकॉज गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज है, बट कितने लोग ऐसे हैं जो, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज, एंड बाय द वे अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन यू। अभी तो लाइक इट्स गोइंग टू बी लाइक, अभी तो अमेजिंग सेशन शुरू ही हुआ है, राइट? सो डी टेक्निक डन, टाइम एंड सेंस डन। एक बार फॉर्मेशन शीट हो जाए, फिर हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे लाइव। इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठाना, हम इस मेथड से करेंगे ना, यू विल बी लाइक वाओ, how come it could be so simple? Easy, it's going to be like that. But before we go on that level,
कितने लोग चाहते हैं कि यार अमन लेट्स ब्रिंग इट ऑन विद द प्रैक्टिस, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट एज वेल, क्योंकि तुम्हें स्टार्ट करना तो आ गया थोड़ा बहुत, अब सेंटेंस को फिनिश करने का इज द रियल की. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू डू दैट? ओके, बट बिफोर वी डू, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्यूचर सेशंस भी अटेंड करना चाहते हैं? लेट मी नो. अभी मैं सब क्लियर करूंगा, सेंस एंड ऑल दैट. अभी मुझे पता है मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू अटेंड मोर सेशंस? सो गाइस, we will be taking hardly 1 or 2 minutes break. ठीक है, you guys can drink water, you guys can go to the washroom. 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, पर उस ब्रेक में मैं कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के लिए, if you guys want to drink water and all that, because एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग 30 मिनट्स का सेशन अभी मैं स्टार्ट करूंगा रिगार्डिंग इंग्लिश अस्त्रा. तुम में से कितने लोगों ने इंग्लिश अस्त्रा का कंसेप्ट ही नहीं सुना? सो बिफोर वी डू दैट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वुड लव टू अटेंड मोर सेशंस लाइक दीज? अब उसके लिए गाइज, एज वी गाइज आर सो मेनी नंबर्स, अभी मैं देख पा रहा हूं 6,500 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन को. सो विल दैट बी ओके कि अगर मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दूं? You guys can follow me, and if you think that I deserve your follow, quickly go on Instagram, follow me and come back. अब उससे होगा क्या? फॉलो से आपको क्या फायदा है? बहुत फायदा है, बिकॉज जब भी मैं कोई भी सेशन लूंगा, मैं अपनी स्टोरीज में अपडेट कर देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन. डन, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट, फटाफट गाइस. अभी एग्जैक्टली राइट. एंड कितने लोगों को ये दिमाग से वो भी हो गया कि वी हैव कंप्लीटेड 1 hour एंड वी हैव डिस्कस इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स. डन. सो गाइस क्विकली, फटाफट लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो मी एंड कम बैक, एंड हम एग्जैक्टली 8:03 PM पे सेशन को स्टार्ट कर देंगे. 2 मिनट है, फटाफट. वी गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद इन 3 minutes. फटाफट, क्विकली गाइज. एंड आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बिकॉज ये जो 20-25 मिनट्स होने वाले हैं ना, यू गाइज आर गोइंग टू बी लविंग इट लाइक क्रेजी. बहुत मजा आने वाला है. अब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं. लेट्स गो डीपर. Quickly, guys, go on Instagram and you guys can follow me if you think that I deserve a follow. And अगर आप मेरे future sessions को attend करना चाहते हो, तो मैं जो भी notification है, मैं वो Instagram के अपने stories पे डालता हूँ. If you think कि I don't deserve your follow, don't follow me. But if you think I deserve a follow, do it. Quickly, guys. You guys have 2 minutes. And by the way, I'm not going anywhere. I'm just getting myself ready for the wonderful, amazing session which is coming. Quickly. राइट, अभी रिवीजन विजन सब करेंगे, फटाफट. क्विकली गाइस, क्विकली. मजा आया डी टेक्निक में, टाइम एंड सेंस में? अरे अभी रुको, तुम्हारे लिए इंग्लिश अस्त्रा. ये देख रहे हो, सरप्राइज देख रहे हो, बूम बूम. ये क्या है? राइट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? हाउ टू रीच टू द कॉन्फिडेंस लेवल? वी गाइस, क्योंकि एवरीवन वांट्स व्हाट? कॉन्फिडेंस. बट हाउ टू रीच देयर? लोगों की सोच, like we need to change the way we think. We guys are going to do it. ये formation sheets भी आ रही हैं. Quickly guys, quickly do it. You guys have 1 more minute. Everyone, how many of you guys have done it? Let me know. फटाफट करो. And within 1 minute में we guys are going to start the session. Quickly guys. Done. Let's start now. How many of you guys have done it? Done. चलो start करें अब. We guys have 10 more seconds. फटाफट गो. इंस्टाग्राम पे कोई रील्स नहीं देखनी है. जस्ट कम बैक एंड वी गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, चलो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब देखते हैं कि यार डी टेक्निक तो सीख ली, फॉर्मेशन शीट तो लाइक वो तो सीख लिया, अब आगे क्या? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. हियर वी गो. डन. सब लोगों ने कर दिया. अब नो इंस्टाग्राम, अब लेट हो गए. तुम 3 मिनट में अगर फॉलो नहीं कर पाए तो इंग्लिश कैसे सीखोगे यार? थोड़ा लाइफ में स्पीड लाओ. नाउ लेट्स फोकस बैक. एवरीवन जस्ट टाइप डाउन द फोकस. फटाफट सब लोग फोकस वर्ड लिखो. एवरीवन, सब लोग फोकस लिखो. अरे डी टेक्निक दोबारा समझा लूं. एवरीवन राइट द वर्ड फोकस. नाउ वी गाइस आर कमिंग बैक. चलो ग्रेट. नाउ गाइस, अब होगा क्या? नाउ व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑल दीस पर्टिकुलर डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस टू यू, बिकॉज मैंने ना इस पूरे पर्टिकुलर थिंग को, बिकॉज व्हाट आई एम क्लेमिंग कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे एंड यू कैन फॉर्म, यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट एनी डैम सेंटेंस इन दिस वर्ल्ड. चाहे वो मैं बोलूं, बराक ओबामा बोले, नरेंद्र मोदी बोले, कोई भी बोले, एनी एनी लाइक विराट कोहली बोले, शाहरुख खान बोले, anyone who speaks well in English, your boss कोई भी बोले, pattern is this only, right?
अब द क्वेश्चन इज कि यार इस पैटर्न को यूज कैसे करते हैं, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? करें, यूज करना सीखें। बूम, दिस थिंग इज नोन एज, अब हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग दिस थिंग? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? अब होगा क्या कि आप लोगों को मैं यहां पे सेंटेंस दूंगा, ठीक है? आप लोगों को मैं यहां पे सेंटेंस दूंगा एंड हम सब मिलके डी टेक्निक लगाएंगे। फिर हम टाइम सेलेक्ट करेंगे कि यार पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर, इट्स लाइक अ गेम। फिर अगर मान लो सेंटेंस प्रेजेंट का, वी विल सी कि यार वो सिंपल का है, कंप्लीटेड का है, कॉन्टिन्यूटी का है। देन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट। फॉर्मेशन शीट क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू प्ले दिस गेम विद मी? लेट मी नो, हाँ या ना? कितने लोग रेडी हैं? कितने लोगों को ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी लग रहा है कि वाओ यार, इट इज सो सिंपल? बिकॉज द वे आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस, इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट कि यार हम जब अपने कम्युनिटी में एलीट टॉकर जो हमारी कम्युनिटी है, राइट, वहां पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो वहां पे पता है क्या होता है? गेम का एक माहौल बनता है कि मैं एक सेंटेंस देता हूं तो सब लोग कहते हैं ठीक है अमन, हमने डी टेक्निक लगा लिया। ओ यार, इस बार यार टाइम में गलती हो गई है। अब टाइम के बाद टाइम लग गया यार, इस बार ही सेंस में गलती हो गई। चलो यार अमन एक और सेंटेंस दो। आ डी टेक्निक सही, टाइम सही, सेंस सही, फॉर्मेशन शीट, बूम, माय सेंटेंस इज करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर इट? एंड एक बार अगर आपका ये पैटर्न बन जाता है, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, हाउ यू कैन नाउ राइट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दिस शीट। क्योंकि ये शीट जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है क्या? द आंसर इज नो। डू यू थिंक दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम यूजिंग दिस शीट? हाँ, इनिशियल स्टेज पे इस शीट ने मेरा बहुत साथ दिया, बट अब मैंने इसको इस तरीके से प्रैक्टिस किया कि मुझे शीट्स की जरूरत नहीं है। वो ट्रिक भी सिखाएंगे। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर इट? एक्साइटेड? ये सारी की सारी चीजें वी गाइस आर गोइंग टू डू टुमारो। कल मैं आप लोगों के सामने फॉर्मेशन शीट को रिवील करूंगा। एंड आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर प्रोबेबली मोर देन, अगर मैं लॉजिक वाइज देखूं तो 2 या 3 लाख सेंटेंसेस होंगे पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम डे टू डे लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में यूज करेंगे। यस और नो? 1 लाख सेंटेंसेस होंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट हमने ना उन 1 लाख सेंटेंसेस को स्टडी करके 150 सेंटेंसेस पे ले आए हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ उन 150 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो सारे उन सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है एंड उन लॉजिक्स को यूज करके कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस फ्रेम कर सकता है। तो वैसे ही आउट ऑफ 150 सेंटेंसेस में से कल हम 8 to 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। 8 से 10 सेंटेंसेस को कल डिस्कस करेंगे एंड आप देखना वो 8-10 सेंटेंसेस इतने पावरफुल है कि आप एक सेंटेंस करोगे आपको लगेगा वाओ, नाउ यू कैन राइट। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट पावरफुल। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी, सबको कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग, एंड अभी सेशन खत्म नहीं हुआ बिकॉज इंग्लिश अस्त्रा इज कमिंग। डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस, फॉर्मेशन शीट इज गोइंग, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो वी गाइस आर गोइंग टू डू इट टुमारो एंड वी गाइस विल बी डिस्कसिंग 8 to 10 सेंटेंसेस टुमारो यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। और कल मैं ये फॉर्मेशन शीट डिस्क्लोज करूंगा। सबको समझ में आया? रिवील करूंगा बेसिकली। डन? अब ना लेट्स टॉक अबाउट आपने कभी, कितने लोग जेन्युइनली इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं मुझे बताओ, और नहीं कर पा रहे हो? लॉजिक पता है क्या है? बताऊं लॉजिक क्या है? तुम लोग यहां पे हो, लाइक इवन आई वाज आल्सो हियर, लाइक सो मेनी इयर्स अगो। तुम लोग यहां पे हो। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम ना कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, राइट? यही है प्रॉब्लम, कि तुम्हें पर कॉन्फिडेंट होने का ना राइट मेथड ही नहीं पता है। यू गाइस वांट टू नो द राइट मेथड? सुनना अब मेरी बात, ठीक है? अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग यहां पे हो, तुम्हें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होना है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जितने भी लोगों को आज तक रिजल्ट्स नहीं आए ना, तुम में से मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स नहीं आए ना, सबकी सोच यही है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा और मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। हाँ या ना? तुम लोग यही सोचते हो? स्ट्रेट अप्रोच, यस और नो? कि मैं यहां पे हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन रात लगा रहूंगा और गिव अप ही नहीं करूंगा और मैं एक दिन कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ये रॉन्ग अप्रोच है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। तभी इंग्लिश में मैंने कहा ना, जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो ऐसा सोचते हैं। बट नाउ द थिंग इज कि रिजल्ट्स आने कैसे चाहिए? जिनको रिजल्ट्स आते हैं ना, दे हैव अ फॉर्मूला, दे हैव अ कंसेप्ट, दे हैव अ ट्रिक नोन एज इंग्लिश अस्त्रा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं,
जब आप इस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस को लाना चाहते हो ना, आपके पास पता है वेज क्या होते हैं, दीज आर योर वेज, है ना। इंग्लिश में मास्टर करने के लिए एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इंग्लिश मूवीज देख रहा है, नोट्स बना रहा है, ये कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, थिंक इन इंग्लिश कर रहा है, इंग्लिश इन्वायरमेंट ढूंढ रहा है। कितने लोगों ने ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया हुआ है, मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव फॉलोड ऑल दीज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी? क्या हुआ, रिजल्ट्स आए? क्या हो गया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव ऑलरेडी फॉलोड दीज पर्टिकुलर थिंग्स? क्या हुआ, रिजल्ट्स नहीं आ रहे? क्यों? ये तो बेस्ट वेज है, आप लोग यही तो फॉलो करते हो, राइट? कि यही तो करते हो कि इंग्लिश में बोलना, थिंक इन इंग्लिश करो। नहीं आ रहे रिजल्ट्स, क्यों? बताऊं क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज दीज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आर ओल्ड। एंड कितने लोग एग्री करेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आज तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखो हो क्या रहा है, तुम लोग यहां से यहां जाना चाहते हो, कितने लोग एग्री करेंगे तुम लोग इस ब्लैक जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, हाँ या ना? बिकॉज इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके रोज ये लगता है मैं कल बनूंगा फ्लुएंट, मैं आज बनूंगा, अरे मैं अगले हफ्ते बन जाऊंगा, बट हम इधर ही इधर इधर ही इधर घूमे जा रहे हैं, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? राइट? आया समझ में? बट व्हाट इफ आई टेल यू, आपको ये वही बात है ना, ये वाले अप्रोच को आपको फॉलो नहीं करना है। जो राइट कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज इंग्लिश शस्त्र। दिस इज द पैटर्न। तुम्हें लगता है इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने के लिए जो रोड है वो सीधी है, रोड सीधी है ही नहीं, रोड ऐसे है, पहले ये फिर ये। आया समझ में? कितने लोग ऐसे हैं कि आप लोगों ने कभी भी अपनी इंग्लिश की प्लानिंग नहीं की है, मैं अब आप लोगों की इंग्लिश की प्लानिंग करने जा रहा हूं। सब लोग अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लें ताकि आपको ये चीज पता लगे कि आपको कहां पे आप लोग, like where you guys are actually making a mistake right now. The funda is, सबसे पहले तो आपको ये चीज जाननी होगी कि किसी भी इंसान को ना इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्टली कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाके बात करूंगा और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, राइट? जन्म लग जाएंगे, नहीं हो पाओगे। बट अब ना मुझे, अच्छा, यू ऑल वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश ना, चलो मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी फॉर यू। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंग्लिश शस्त्र कंसेप्ट क्या है। इंग्लिश शस्त्र इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि पहले आपको यहां पे जाना है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वे में यहां पे आना है, स्ट्रेट अप्रोच नहीं लेनी। अब ये 1 और 2 प्रोसेस क्या है, उससे पहले आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी फॉर यू। चलो मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी फॉर यू। बताओ फ्लुएंसी का मतलब क्या है। यू ऑल वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, बट फ्लुएंसी चाहिए ना तुम्हें। मतलब क्या होता है? स्पीक इन कॉन्टिन्यूटी, बिना रुके, करेक्ट सेंटेंस बोलना, ठीक है, टू स्पीक इन अ करेक्ट वे। किसी ने लिखा है प्रवाह, ओके, ग्रेट। अबे यहां तो इंग्लिश लिख लो थोड़ी सी, यहां पे भी प्रवाह लिख रहा है एक, वही ना, लॉजिकल, लाइक बी सेंसिबल ना, राइट? ठीक है, स्पीक विदाउट टेकिंग टाइम, ओके। यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, बी कंटिन्यूड, ओके, चैट्स क्लोज। डिड यू गाइज नोटिस वन थिंग कि 5,000 पीपल, राइट, वैसे इतने लोगों ने तो आंसर दिया ही नहीं, चलो मान लो 5,000 में से 1,000 लोगों ने भी अगर आंसर दिया है, तो आपने नोटिस किया 1,000 लोगों को फ्लुएंसी चाहिए, पर सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं फ्लुएंसी को लेके। देयर इज अ प्रॉब्लम, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री ना कि देयर इज अ प्रॉब्लम यार? 1,000 लोगों का सेम गोल है, 5,000 लोगों का सेम गोल है, पर लॉजिक अलग अलग है। ये कैसे, ये कैसे हो रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में जो फ्लुएंसी की इमेज है, आई एम सो सॉरी, वो गलत है। और वही रीजन है तुम्हें पता ही नहीं फ्लुएंसी असली मतलब होता क्या है। तो फ्लुएंसी मिलेगी कैसे? जिंदगी भर में ढूंढे जा रहा हूं, पेन नहीं मिल रहा यार, पेन नहीं मिल रहा। वो बाद में जाके पता चला पेन इसको बोलते हैं, अब मुझे पता ही नहीं था ये पेन है, तो मैं जिंदगी भर पेन ढूंढता रहा। आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है। सच बताऊं, आपको पता ही नहीं फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है। जितने भी आपने मीनिंग्स या डेफिनेशन दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो गलत है, इनकम्प्लीट है। तो पहले पता होना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। आई वुड लव टू शो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लुएंसी, एंड उससे आप लोगों का लेवल भी चेक हो जाएगा फटाफट। आओ देखो, पहली चीज, फ्लुएंसी का सिर्फ मतलब बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी हैज नो कनेक्शन ओनली विथ स्पीकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट? फ्लुएंसी इज द कॉम्बिनेशन, और इट्स द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक correct English, that too quickly with confidence. This is what you guys actually want. हाँ या ना? यस or नो? कितने लोग एग्री करेंगे? कितने लोगों को जो भी फ्लुएंसी में चीज चाहिए? क्योंकि यार देखो, एक सिंपल सी बात ये है,
फ्लुएंसी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश क्विकली, दैट टू विथ कॉन्फिडेंस। अब आप देखना, मजेदार बात देखना, जिस दिन आपका रिटन पोर्शन सुधर गया तो सो कॉल्ड आपकी ईमेल सुधर जाएंगी। यस और नो? कितने लोग एग्री करे हैं? एंड जिस दिन आपका स्पीकिंग सुधर गया उस दिन सो कॉल्ड आपकी मीटिंग्स में जो प्रेजेंटेशंस हैं वो सुधर जाएंगी। आया लॉजिक समझ में आया कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है? थोड़ा फंडा क्लियर हो रहा है? अरे दिमाग में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जिस दिन ये चीजें आ गई, समझना इस बात को, ये सीक्वेंस में आती हैं। हवा में बात करने से इंग्लिश नहीं आती। लेट्स बी वेरी ग्राउंडेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस मीनिंग ये क्यों इतनी पावरफुल है। अगर आप मुझे कोई भी प्रोफेशन बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइट सुधर जाता है तो डू यू गाइस एग्री कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स लाओगे? आप अपना रिज्यूमे अच्छे से लिख सकते हो? तो ये वाला लॉजिक है। फिर जब ये लॉजिक हो जाएगा, फिर आप जब ढंग से स्पीक कर सकते हो, तब डू यू गाइस एग्री कि आप ढंग से इंटरव्यू दे सकते हो? यस और नो? ये इंटरव्यू देना, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग्स देना, ये कैटेगरी है ढंग से लिखना, ईमेल्स लिखना। एंड कितने लोग लॉयर्स हैं बाय द वे? लॉयर्स कितने लोग हैं? वो याद है ना अपना वो, लाइक कितने लोग अकाउंटेंट्स हैं? ड्राफ्टिंग करना, राइट? ड्राफ्टिंग इज अ केस ऑफ दिस, कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, अब उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना इज दिस। पर मैक्सिमम लोग रिपोर्ट बना ही नहीं पाते। हाँ या ना? यू गाइस एग्री? रिपोर्ट भी हम गूगल से देख के बना रहे हैं। गूगल से देख के हम यहां तो चीटिंग कर लेते हैं, यहां तो मैं नोट्स बना रहा हूं दोस्त का, ईमेल भी लिख रहा हूं चैट जीपीटी से। पर होता क्या है, ये तो चीजें हो जा रही हैं क्योंकि गूगल है, चैट जीपीटी है। पर जब यहां पे ये चैट जीपीटी स्पीकिंग पे नहीं चलता। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? चैट जीपीटी स्पीकिंग में नहीं चलता, राइट? यहां तो तुम्हारा गुजारा चल रहा है क्योंकि, और जब आपका बॉस ये बोल देता है, अच्छा आपने ईमेल लिखी है, चलो इसको एक्सप्लेन करना, गए डाउन। दिस इज द वे। लॉजिक समझ में आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि जो बात मैं बोल रहा हूं उसमें सेंस है, बात में दम है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये कोडिंग, अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, वो कोडिंग थोड़ी बहुत उसको लिखना, थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखना, गूगल से यहां चीटिंग हो जाएगी, पर उस कोडिंग को अब एक्सप्लेन करना है, यहां पे गूगल नहीं चलता मेरे भाई। यहां पे गूगल चैट जीपीटी नहीं चलता। एंड दिस इज, दीज बोथ आर दी बॉटलनेक्स ऑफ योर इंग्लिश। अगर मैं एक मदर की बात करूं, तो वो बच्चों का करिकुलम नहीं लिख पा रही है, एक डायरी नहीं लिख पा रही है, वो पेरेंट टीचिंग मीटिंग में एक मदर बात कैसे करेगी गाइस? आया समझ में? आया नाउ? अंडरस्टैंड, बिकॉज जो मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश अस्त्र रखने जा रहा हूं, दैट इज नॉट जस्ट एन इंग्लिश अस्त्र, दैट इज योर करियर अस्त्र। तुम करियर में किसी भी लेवल पे इंप्रूव हो जाओगे कैसे, अब मेरी बात को समझना। देखो, अब ये सारी चीजें हैं, इन सब में से जो सबसे पावरफुल चीज है ना, दैट इज कॉन्फिडेंस। डू यू गाइस एग्री? डू यू गाइस एग्री? इन सब में से हम सबको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। अभी मैं पूछूंगा ना कितने लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, सब लोगों को चाहिए। पर एक्चुअली एक बात बताऊं, ये सबसे लीस्ट पावरफुल है। ये बिल्कुल भी चीज पावरफुल नहीं है। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस उन लोगों के पास होता है जो लोग करेक्ट एंड क्विक होते हैं। गेम समझ में आई है? गेम समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द गेम? आप लोग कॉन्फिडेंस पता है क्यों फील नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को लेके? क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें पता है यार मैं तो गलत बोलता हूं, और मैं तो धीरे भी बोलता हूं। गया, कॉन्फिडेंस इज डाउन। हमें किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंस तब आता है व्हेन आई नो फ्रॉम विद इन कि व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट इज करेक्ट। व्हाट आई एम स्पीकिंग इन अ क्विक मैनर। ओ वाओ, आई एम कॉन्फिडेंट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? आया मजा आया? दिस इज व्हाट इंग्लिश अस्त्र इज ऑल अबाउट। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट होना है, right? This becomes the goal number one. The second goal becomes to be quick in English language, and then this particular goal comes of becoming confident. The biggest mistake which you might be doing, कि आप लोग एक बिगनर हो या किसी भी लेवल में हो, you are directly targeting to be confident. That will never happen in this life. आया समझ में? मजा आया? Yes or no? कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? सबको समझ में आया? यही प्रॉब्लम है, कितने लोगों का बल्ब ऑन मोमेंट आया कि हाँ यार, साला मैं पूरी जिंदगी ये सोचता रहा मैं मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, ये ईमेल के लिए तो मैं चैट जीपीटी यूज कर लेता हूं, है ना?
पर मैं वो ईमेल्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लॉजिक्स गलत चल रहे हैं भाई। ये है, दिमाग में सही चीजें नहीं है। आया सबको समझ में? थोड़ा दिमाग खोल रहा है नाउ। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द पैटर्न। दिस इज व्हाट द पैटर्न इज। देखो, आप लोगों को इंग्लिश में, आप ना इसका सबसे पहले तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। राइट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। बिकॉज अब मैं अब 5-10 मिनट लेके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। राइट, आप ना यहाँ पे इसको इस तरीके से देखना कि करेक्ट होना ना एक ए लेवल है। ए लेवल है। एंड फास्ट एंड कॉन्फिडेंट होना ये एक बी लेवल है। मतलब पहले ए लेवल सुधरेगा फिर बी लेवल सुधरेगा। ठीक है, आया ना समझ में सबको? ये बी लेवल है। तो ए एंड बी, पहले ए सुधारना है फिर बी बी सुधारना है। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉजिक समझ में आया? अब ना आपको ना मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं जो बहुत छोटी सी है। फटाफट इंजीनियर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स जितने भी हैं, एडवोकेट्स, आ जाओ अपना क्विकली। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन? फटाफट देखो। अब मेरी बात को एक बहुत ही दिमाग खोल के लॉजिकल समझना। तुम लोग ये इंजीनियर्स हो, है ना? राइट, ये इंजीनियर्स हो। अब तुम ईमेल नहीं लिख पा रहे, रिपोर्ट्स नहीं लिख पा रहे, प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि तुम लोगों को ए वाली प्रॉब्लम है। ए प्रॉब्लम बेसिकली मतलब कि तुम लोग अभी इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो। तो पता लगा कि ये कितनी पावरफुल चीज है। और अगर मैं आपके बी प्रॉब्लम की बात करूं, बी मतलब कि आप लोग क्विक भी नहीं हो एंड अभी कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। और एज अ क्विक एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो ये मीटिंग्स लेना, प्रेजेंटेशन लेना, लीडरशिप आ ही नहीं रही। कितने कितने लोग इंजीनियर्स हैं जो मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ या ना? यस और नो? इंजीनियर्स, बात में दम है। एंड सेम लॉजिक आप लगाओ हर फील्ड में। हर फील्ड में आप सेम लॉजिक, वही ना, रूट कॉज पे इंडिया काम ही नहीं कर रहा है। अब कितने लोग टीचर्स हैं? टीचर्स, आप लोगों करेक्ट नहीं हो इसलिए स्पीचेस नहीं लिख पा रहे हो, नोटिस बोर्ड नहीं लिख पा रहे हो, क्लास की रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हो। और एज आप क्विक एंड कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कंसेप्ट्स। टॉक अपने फेलो टीचर से नहीं बोल पा रहे, प्रिंसिपल से नहीं बोल पा रहे, पोडियम पे नहीं बोल पा रहे, असेंबली कॉलेज में तो भूल ही जाओ। यस और नो? कितने टीचर्स लोग मेरी बात से सी कर, लाइक कितने टीचर्स मेरी बात से लिख। एंड अब जितने भी फील्ड है, अब मैं सबको तो नहीं बताऊंगा, मैनेजर्स, अकाउंटिंग फील्ड, चेक करो। ऊपर वाली जितने भी ए वाली प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे करेक्टनेस से है। सारी प्रॉब्लम तुम्हारे करेक्टनेस से। अब मैं तुम्हें करेक्टनेस का एक दिव्य अस्त्र देने वाला हूं। राइट, अब देखो ना, ये जितनी भी बी वाली प्रॉब्लम्स है तुम्हारी स्पीड एंड कॉन्फिडेंस की है। आप स्टूडेंट की भी बात करो, होम मेकर की भी बात करो, ए एंड बी ये लॉजिक आपको हर जगह नजर आएगा। राइट, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, तुम ना बी वाली प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सुधारते हो, है ना? हाँ या ना? मुझे बताओ। तुम बी वाली प्रॉब्लम्स के लिए परेशान हो, पर सोल्यूशन ए में छुपा है। आया समझ में? तुम बी वाली प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा परेशान रहते हो, मैं बोल नहीं पाती, मैं मीटिंग नहीं दे पाता। भाई, अब लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको बस समझना पड़ेगा कि मेहनत आप लोग कर रहे हो, पर वो गधा मजदूरी हो रही है। गधा मजदूरी से रिजल्ट्स नहीं आते। लॉजिकल बात अब आप समझना। एंड नाउ आई विल गिव यू द ताव प्रिंसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें अब ये तो पता लग गया ना करेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान करेक्ट ही नहीं, वो फास्ट एंड क्विक नहीं हो सकता। और जो इंसान करेक्ट एंड फास्ट एंड क्विक नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। बूम! आया समझ में? आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। जो इंसान करेक्ट नहीं है, वो फास्ट एंड क्विक नहीं हो सकता। और जो इंसान करेक्ट एंड फास्ट एंड क्विक नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस तो अपने आप आता है। आया समझ में? यस और नो? नाउ, अब ना, आई वॉन्ट टू गिव यू वन पैटर्न जिसके थ्रू आपको अपनी चीजों को सुधारना है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर दैट पैटर्न? पैटर्न दू? ठीक है, समझना उसको थोड़ा ना, अपने पे इंट्रोस्पेक्ट करो। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल देता है। यूट्यूब पे तुम किसी ने बोल दिया कि इंग्लिश मूवीज देखनी है, हो गया। कब तक देखोगे? ये तो बताया नहीं किसी ने। कितनी देखनी है, कौन सी देखनी है? न्यूज़पेपर पढ़ो। अरे कौन सा पढ़ना है, कब तक पढ़ना है? जिंदगी भर पढ़ते रहना है क्या? राइट। सो वी नीड टू बी वेरी लॉजिकल इन टर्म्स और अप्रोच कि भाई मेरा एंड गोल क्या है, कहीं तो रुकना है ना जाके। सिंपल सी बात है, पूरा जिंदगी बस इंग्लिश सीख रहा हूं। दिस इज व्हाट इट इज। राइट नाउ, अब पहली चीज तो ये है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो मैं चलो ये बात मैं लास्ट में रिपीट करूंगा, अब आप इधर देखो। नाउ लेट्स समराइज। अब आप देखना, मैजिक देखना, ठीक है। बेसिकली देखा जाए, you guys want to write error free and correct English like WhatsApp chatting and email and letter writing? Yes or no? We guys all want to do this. We guys all want to talk fluently over the call, and we want to be we need to speak confidently in front of people. यही तीन goals है ना majorly. जिसके ये तीन goals पूरे हो जाते हैं, he or she will ultimately consider himself as a confident speaker. Yes or no? अब ना इन तीन गोल्स को ना मैंने ना इन तीन वर्ड्स में डिवाइड कर दिया कि बेसिकली यार, इंग्लिश में टेक्स्ट इंप्रूव करना है, ऑडियो इंप्रूव करना है, वीडियो इंप्रूव करना है। यस और नो? टेक्स्ट मतलब कि यार मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना किसी से, ये बॉस को ईमेल लिख रहा हूँ एंड ऑल दैट। ऑडियो मतलब मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ या बॉस को समझा रहा हूँ कि यस सर, आई हैव सेंट यू दैट पर्टिकुलर मेल, सो यू कैन जस्ट मार्क डाउन द मिस्टेक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू, व्हाटएवर, राइट? ऑडियो में। एंड वीडियो इज बेसिकली या तो वीडियो कॉल या वन ऑन वन, इफ आई एम हैविंग अ वर्ड विद सम पर्सन। यही तीन लॉजिक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी वीकनेस से, टेक्स्ट। अब हम लोग टेक्स्ट करते कैसे, मैं आपको शो करके बताता हूं, एंड अब मुझे बताना कि सच में ऐसा हो रहा है। अब देखो, अब मुझे कुछ लिखना है, मान लो मुझे ईमेल लिखनी है। मैं फोन पे बैठा, मान लो लैपटॉप पे बैठा, इट्स लाइक माय मिनी फोन। सो मैं लैपटॉप पे बैठा, मैंने ईमेल स्टार्ट किया। डियर सर, मतलब मुझे लिखना है कि मैंने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, आप प्लीज एक बारी चेक कर लेना, ताकि मैं ये वाली रिपोर्ट्स टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेज दूं। ठीक है। अब मैं बैठा, आई हैव सेंड, आई हैव सेंट या सेंड दिस ईमेल टू यू, या नहीं मैं भेज रहा हूं ना, तो आई एम सेंडिंग आएगा। यार क्या होगी, एक सेकंड चैट कर लूं क्या? अरे नहीं कर सकता, ये लोग पकड़ लेंगे, खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। आई सेंट आई सेंट ईमेल, अरे यार, अबे यार फटाफट, बॉस बोल रहा था मेल भेज देना, अब कैसे भेजूंगा? आई हैव सेंट मेल, अबे यार चल आगे बढ़ता हूँ। आई सेंट मेल टू यू, प्लीज चेक एंड क्लैरिफाई, क्लैरिफाई की स्पेलिंग, अबे यार गूगल, फिर ये लोग यार गूगल भी नहीं कर सकता। प्लीज चेक ही लिख देता हूँ, क्लैरिफाई लिखता ही नहीं यार। प्लीज चेक व्हेन यू से ओके, अबे यार ये बन ही नहीं, अबे छोड़ यार, मेल लिखता ही नहीं हूँ, बेइज्जती हो जाएगी, गलत हो गई, डिलीट। बॉस को क्या करता हूँ, कॉल ही कर लेता हूँ, राइट? और हिंदी में बोल दूंगा कि मेल भेज दी है। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर। सर वो आई एम सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, वो आपने बोला था ना मेल भेजने को, वो मैंने आपको सर सेंड कर दी है। ओके सर, थैंक यू सर, आप चेक कर लेना। मैंने मेल क्यों नहीं भेजी सर आपको? सर मुझे लगा कि आपको कॉल करके बता देता हूँ, मेल शायद बस सर मुझे लगा खुद बता देता हूँ मैंने अभी अभी सर। ओके सर। अपने आप से कब तक झूठ बोलना राइट, अपने आप से झूठ बोलना कब तक बंद करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, कि बोलने की ना वजह से तुम्हें कॉल करनी पड़ रही है अपने बॉस को। एंड ये तुम किसी भी फील्ड में एग्जांपल ले सकते हो कि यार छोड़ना, फोन पे ही खत्म करता हूँ सर, भेज दी है, ओके सर चेक कर लेना सर, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब समझना, प्रॉब्लम तो समझ ली, यस और नो, राइट? मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट, इट्स अ इंटरनल प्रॉब्लम। और ये दर्द तुम अपने बॉस को नहीं बता पा रहे, अरे तुम किसी को नहीं बता पा रहे, बॉस को तुम ये बोल रहे हो, नो नो सर मुझे लगा कि मैं एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय हूं, तो मुझे आपको कॉल करके ही बताना चाहिए कि मैं देखो मैंने आपको मेल भेज दी। अबे अंदर बात तो ये है कि तुझसे दो लाइनें नहीं लिखी गई हैं। हाँ या ना? कितने लोग रिलेट करेंगे? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। आपको एक चीज तो समझ में आई ना, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, ये क्यों दिया यार? क्यों दिया? राइट? मजाक के लिए? नो, रियलिटी को बताने के लिए एग्जांपल इज। अब आप समझना, लॉजिक को समझना। लॉजिक इज, डू यू गाइस एग्री कि जब हम टेक्स्ट करते हैं, डू यू गाइस एग्री, उस टाइम हमारे पास 5 से 10 सेकंड होते हैं सोचने के लिए? डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? लॉजिक समझो, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि जब हम कुछ भी लिख रहे हैं, हम सब लोगों के पास 5 से 10 सेकंड है टू टेक्स्ट, यस और नो? बट when it's a matter of audio and video, ऑडियो एंड वीडियो में वी हैव 0 सेकेंड्स एक्स्ट्रा। बिकॉज अगर मैं आपसे ईमेल मांग रहा हूं, तो आप चाहे 1 मिनट बाद दो, 10 मिनट बाद दो, चीटिंग करके दो, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे लगेगा अरे रौनक को इंग्लिश आती है। बट इफ आई एम हैविंग अ वर्ड विद यू ओवर द कॉल, यू नीड टू गिव मी द आंसर्स ओवर द कॉल, एंड
वहां पे इंग्लिश में सोचने के लिए 0 सेकंड्स है। अब लॉजिक क्या है, फंडा समझना, फंडा की क्यों मैंने इतना एग्जाम्पल दिया। आप सब लोग ना इस क्वेश्चन के पीछे कि यार मैं बॉस के सामने बोल नहीं पाता, ऑफिसर्स के सामने नहीं बोल पाता, इसके पीछे रो रहे हो। पर अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे आंसर यस या नो में देना। क्या आप, कैन यू राइट करेक्ट ईमेल्स, कैन यू राइट करेक्ट ईमेल्स इन इंग्लिश और नॉट? मुझे बताना, हाँ या ना में बताना। ईमेल्स में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, इट कुड बी अ करिकुलम, इट कुड बी द सिलेबस, इट कुड बी अ नोटिस बोर्ड, इट कुड बी योर फीलिंग्स, इट कुड बी योर व्हाट्सएप चैट। लेट मी नो, क्या वो कर पा रहे हो? कैन यू राइट करेक्ट ईमेल्स इन इंग्लिश और नॉट? ऑनेस्टली मुझे बताना, विदाउट चीटिंग, विदाउट यूजिंग जीमेल एंड दिस चैट जीपीटी थिंग। मुझे बताओ, आंसर दो, हाँ या ना, हाँ या ना। फटाफट सब लोग आंसर दो, क्विकली गाइस, एवरीवन, क्विकली, नॉट प्रॉपरली। अगर थोड़ी सी भी चीटिंग करते हो तो नो लिख दो, बॉस से अपने किसी दोस्त से हेल्प लेते हो नो लिख दो, राइट बिल्कुल नहीं लिख पाते, चैट्स को बंद करो। आपने नोटिस किया कि नो, 85% पीपल सेड नो, यस और नो, एंड सिर्फ 15% लोगों ने ही यस बोला। इसमें से भी आधे लोगों ने झूठ बोला होगा। अब लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है। Now I would love to explain one legendary TAF principle. This TAF principle known as text audio video. Text basically क्या हुआ, ये तुम्हारा ईमेल वीमेल लिखना। ऑडियो मतलब बॉस को कॉल पे अच्छे से बात करना। वीडियो मतलब क्या हुआ, प्रेजेंटेशंस लेना, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, ईमेल्स लिखना। ऑडियो मतलब बॉस से फोन पे बात करना, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम लोग डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, और मेरा मानना पता है क्या है, जो इंसान डायरेक्टली प्रेजेंटेशन का पूछेगा या सोचेगा, ही कैन नेवर एवर बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिकॉज वो पैटर्न ही नहीं सही फॉलो कर रहा। आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान ढंग से ईमेल नहीं लिख पा रहा, जो इंसान फोन पे इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा, वो प्रेजेंटेशन ले पाएगा क्या कभी? दिमाग खोला? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, यस और नो, हाँ या ना? बात में दम है गाइस, मुझे बताओ। आप सब लोग, अरे राइट, छोड़ो, मैं इस पे कमेंट ही नहीं करूंगा। एक बच्चा कह रहा है व्हाट इज ईमेल, राइट, जाओ बिल्डिंग से कूद जाओ अगर आपको ईमेल नहीं पता, मतलब करना मत ऐसे, हाँ मेरे पे नाम आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है व्हाट इज ईमेल, जाओ बिल्डिंग से कूद जाओ, उधर नहीं इधर बालकनी की तरफ, राइट। नाउ ईमेल, बॉस का फोन, प्रेजेंटेशन। नाउ अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। पहली चीज तो ये है कि अगर तुम्हारा टेक्स्ट, पहली चीज तो ये है, जो इंसान, डू यू गाइस एग्री, जो इंसान ढंग से ईमेल नहीं लिख पाता, वो अभी बॉस के फोन से भी नहीं बात कर पाता होगा और प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाता होगा, हाँ या ना? यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे? दिस इज व्हाट इट इज, राइट? आया समझ में? ईमेल्स, बॉस का फोन एंड प्रेजेंटेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लॉजिक विच इज नोन एज, मतलब मेरा एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि दिस इज यू, दिस इज योर ब्रेन। जब भी आप कुछ लोग लिखते हो, टेक्स्ट करते हो, तो आपके पास सोचने के लिए 5 से 10 सेकंड्स होते हैं। और हमारी रियलिटी क्या है कि हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा मन करता है डायरेक्टली अपने बॉस से बात करने का, ऑडियो एंड वीडियो करने का, मतलब प्रेजेंटेशंस देने का, बॉस से फोन पे अच्छे से बात करने का, राइट। अपोजिट जेंडर से, अगर मैं मेल हूं तो मुझे फीमेल से अच्छा लगता है कि मैं इंग्लिश में उनसे बात करूं, फीमेल्स हूं तो मुझे मेल से लगता है, व्हाटएवर। आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 5 से 10 सेकंड में ढंग से टेक्स्ट नहीं कर पा रहा, क्या जब वो प्रेजेंटेशन देगा तो प्रेजेंटेशन में 0 सेकंड्स मिलते हैं सोचने के लिए, तो क्या वो ढंग से प्रेजेंटेशन दे पाएगा? द आंसर इज नेवर। लॉजिक समझ में आया कि हम लोगों को पहले अपना ये पैटर्न इंप्रूव करना है। वी नीड टू इंप्रूव दिस इन ऑर्डर टू इंप्रूव दिस। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? राइट, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ये चीज समझ में आई है? सबको ये चीज समझ में आई है? मैं एक बारी दोबारा यहां पे लिख देता हूं रेड कलर में, राइट। सबको ये चीज समझ में आई है? मुझे बताओ, सबको ये चीज समझ में आई है? एंड दिस इज व्हाट द पैटर्न इज, राइट, दिस इज व्हाट द पैटर्न इज। आप लोगों को अपनी इंग्लिश की ग्रोथ इस तरीके से करनी है। आप लोग करते हो इस तरीके से, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। रादर यू नीड टू बी, आपको अपनी जो ग्रोथ करनी है वो इस तरीके से करनी है। दिस इज राइट। मतलब पहले मैं ईमेल्स ढंग से लिखूंगा, राइट, ईमेल्स मतलब मैं अपना रिटर्न पार्ट सुधारूंगा, फिर मैं थोड़ा बहुत ऑडियो पे अपने आप को सुधारूंगा,
then I will think about presentations. जो लोग उल्टा चलते हैं, they can never be. Now let's come to the summarization part. आप लोगों के दो ही लेवल हो सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में करेक्ट होंगे या क्विक एंड कॉन्फिडेंट होंगे. अगर आप इंग्लिश लेवल में करेक्ट नहीं हो, आपको पहले अपना टेक्स्ट सुधारना चाहिए, मतलब वो ईमेल्स एंड ऑल दैट स्टफ. राइट, ठीक है, आया ना समझ में? ठीक है. एंड अगर आप क्विक एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर आपको ये ऑडियो एंड वीडियो के बारे में सोचना चाहिए. बूम, दिस इज व्हाट द पैटर्न इज. अगर तुम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट नहीं हो तो टेक्स्ट करना चाहिए, मतलब ईमेल राइटिंग्स एंड ऑल दैट पे फोकस करना चाहिए. एंड उसको करने के लिए मैंने आज आपको बताया था डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस. समझ में आया? यस और नो? राइट, आया ना सबको समझ में कि डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस क्यों बताया था? ताकि हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाए ढंग से. क्विक एंड कॉन्फिडेंट इसलिए था कि आप लोग अपना प्रेजेंटेशन ढंग से ले पाओ. ये सारी की सारी चीजें अब हम कल करेंगे. बट आज का सेशन समराइजेशन हुआ, समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉजिक समझ में आ रहा है? राइट, because this audio and video is all about your what? Presentation. लोगों के सामने ढंग से बोल पाना, राइट, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाना. पर पहले ये चीज सुधरेगी, फिर ये चीज सुधरेगी. आया समझ में? राइट, लॉजिक समझ में आया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो लोग अभी करेक्ट नहीं है ना, वो इधर घुसते हैं. मत घुसो, बर्बाद हो जाओगे. है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो इस लेवल के और इधर घुसते हैं? मत घुसो, इधर ही रहो. पहले ये, फिर ये, बात खत्म. इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. आया समझ में? यस और नो? इजी, इजी. अब आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है. आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट द सरप्राइज? राइट, चलो. पहली चीज है ना, अभी तो हमने कुछ सेशन में, अभी यू हैव जस्ट गॉटन 5 और 10% ऑफ द नॉलेज. जब आप कल आओगे, बहुत सारी चीजें हमें आगे कवर अप करनी है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू मास्टर, फॉर्मेशन शीट एंड ऑल दैट स्टफ. बहुत सारी अभी बड़ी बड़ी चीजें बची ही हैं. सबसे पहली चीज, नाउ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज का ये जो इवेंट था एंड जो कल भी इवेंट होना चाहिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सराउंडिंग्स में कोई आपका फैमिली मेंबर है या कोई आपका दोस्त है जिसको इंग्लिश की नीड है? मुझे बताओ, मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको नीड है. मे बी इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, इट कुड बी योर गुड फ्रेंड, इट कुड बी इवन योर बॉस, इट कुड बी इवन योर सबॉर्डिनेट. यस और नो? एंड कितने लोगों को ये लगता है कि यार उनको भी ये वाले इवेंट्स अटेंड करने चाहिए ताकि उनका दिमाग खुले, हाउ दे कैन डू एंड ऑल दैट स्टफ. यस और नो? समवन इज राइटिंग, माय फ्रेंड, माय ब्रदर नीडेड. सो व्हाट इज हैपनिंग, मैं ना आपको अभी एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं. ठीक है, मैं आप लोगों को क्विकली क्विकली गाइस, सब लोगों का ध्यान इधर. विद इन 5 minutes वी गाइस आर रैपिंग अप द सेशन. 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग रैप अप कर रहे हैं सेशन को. आई एम गिविंग यू वन लिंक, राइट, एंड वो लिंक है एक व्हाट्सएप ग्रुप का. वो लिंक है, वो लिंक है, मैं WG लिख देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का. राइट, आपको वो वाला व्हाट्सएप का ग्रुप अपने फ्रेंड को सेंड करना है. राइट, आपको वो वाला जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो अपने फ्रेंड को सेंड करना है. एंड योर फ्रेंड और इवन योर फैमिली मेंबर will be able to join this particular workshop for tomorrow for absolutely free. उनको पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डन. और कल उनको लेके आना, बिकॉज आज के कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे एंड नए कंसेप्ट्स पे आगे बढ़ेंगे. कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाएगा. डन. आपके ग्रुप्स में हमने मैसेज भेज दिए, वो आप अपने फ्रेंड्स को अभी फॉरवर्ड करो, करो. एंड फॉर देम इट इज गोइंग टू बी फ्री. आई कुड हैव इजीली चार्ज 9 रुपीज फॉर इट. यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली 9 रुपीज भी दे देते? बट मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना डेडिकेशन दिखाई है, सो वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज दिस. एंड 9 रुपीज इज नॉट इवन लाइक, राइट, दिस इज व्हाट इट इज. आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिंक चैट पे प्रोवाइड कर दो. आप लोग ना चैट्स का लिंक कॉपी नहीं कर पाओगे एक्चुअली. कल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेके आना. और आज तो फोन पे देख लिया, कल बड़ी स्क्रीन पे देखना, समझना कि क्या बोल रहा हूं मैं, तभी मजा आएगा. टीवी पे कनेक्ट कर लो अपना लैपटॉप HDMI केबल से, लैपटॉप पे देखो, बड़ी स्क्रीन पे देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा यार कुछ है, कुछ चल रहा है. दिस इज व्हाट इट इज. राइट, ठीक है, डन. द सेकेंड थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट, अब आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है. आज के सेशन के, आज के सेशन के जितने भी नोट्स हैं, PDF हैं. PDF मतलब जो मैंने इस बोर्ड पे लिखे नोट्स, मतलब जो हम I1 I2 I3 I4 I5 कर रहे थे, वो सारे के सारे. एंड आप लोगों का एक होमवर्क, आप लोगों का एक काइंड ऑफ होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है. ये तीनों की तीनों चीजें, एंड इवन इफ आई सी इफ आई कैन प्रोवाइड यू दी रिकॉर्डिंग, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आज 11 बजे मिल जाएंगी. तो कल आना तो सेशन में ये नोट्स एंड PDF को रिवाइज करके आना है, ये होमवर्क को कंप्लीट करके आना है. ये 1 आवर का होमवर्क है. डन.
एंड एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, 80% लोग, 80% लोग ये वाली चीज नहीं करेंगे। 80% लोग ये चीज नहीं करेंगे क्योंकि वी आर गिविंग इट फॉर फ्री। क्योंकि जब हमें कोई चीज फ्री में मिलती है वी डोंट वैल्यू इट। बट आई होप आप लोग उन 20% से हो करके आना, ठीक है? वरना जिंदगी भर ऐसे ही चलता जा रहा है। 2023 पूरा निकल गया कि कर लूंगा बेटा, अब करना है। 2024 आ गया है। इस साल में अगर इंग्लिश नहीं आती, हाफ ऑफ द जॉब्स आर गोइंग अवे। डन। आया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई करे ना करे, तू करना, 1 घंटे की तो बात है यार। डन। इजी, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? टू थिंग्स डन। द थर्ड थिंग, वे टू मच इंपॉर्टेंट, एज मुझे आप लोगों को करेक्ट करना है, क्विक करना है एंड कॉन्फिडेंट करना है। मैं देखना चाहता हूं क्विक करना है, कॉन्फिडेंट करना है। आई वुड रियली लव टू नो कि यार आप लोग किस तरीके से बोलते हो एंड आप लोग किस तरीके से लिखते हो, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? एज अ ट्रेनर आई शुड नो यार कि तुम्हारा बोलने में कैसा लेवल है, तुम किस तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने आइडियाज को, किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से लिखते हो। उसके लिए अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे सो दैट आई कैन नो योर एक्चुअल लेवल। अभी वी विल ओपन योर व्हाट्सएप ग्रुप। कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हम उसको ओपन करेंगे फॉर अराउंड 30 मिनट्स। देख लेंगे फॉर 30 मिनट्स के अराउंड हम ओपन करेंगे। आपको क्या करना है क्विकली गाइस, सब लोग, एवरीवन हैज टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, राइट? सबको ये दिख रहा है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट, हियर वी गो। राइट, ग्रुप ओपन हो रहा है। वी गाइस आर गोइंग टू डू अ 30 मिनट्स एक्टिविटी। इसमें आपको मिनिमम 3 to 4 लाइन्स, 3 to 4 लाइन्स या तो स्पीक करनी है। स्पीक मतलब या तो आप वीडियो बना सकते हो, राइट? या आप अपनी ऑडियो क्लिप सेंड कर सकते हो, ऑडियो क्लिप सेंड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि स्पीक में वीडियो या ऑडियो दोनों आ जाता है, बिकॉज मुझे आपके हर लेवल को चेक करना है। ऑडियो, या अगर आपको स्पीक करने में आपकी वाट लगती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो। टेक्स्ट भी कर सकते हो मतलब आप कोई राइट कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हो। 3 to 4 लाइंस या तो आपको वीडियो में बोलना है या ऑडियो क्लिप में या राइट करना है। क्या? टुडे इज लर्निंग, टुडे इज लर्निंग, टुडे इज लर्निंग एंड ग्रुप में भेजना है। टुडे इज लर्निंग एंड ग्रुप में भेजना है, ठीक है? बिकॉज जो लोग भी ये करेंगे उनका मैं पर्सनली रात में बैठ के, कितने लोग होंगे? 5,000 ना? वी हैव टीम मेंबर्स ऑफ, लाइक वी हैव मेनी टीम मेंबर्स। सब लोग 100 भी करेंगे तो हो जाएगा। वी विल सी कि आप लोग किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से लिखते हो। एंड यूज एनी लैंग्वेज, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूज एनी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, आप हिंदी में बोल दो। क्यों? ताकि मुझे इससे पता लग जाएगा कि हाँ, इंसान में कॉन्फिडेंस तो है, पर अभी इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। डन। कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? कोई इशू वाली बात तो नहीं है? सबको समझ में आया? डन। आपको ये लिखना है टुडे इज लर्निंग एंड आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज आपने क्या सीखा और अब कितना एक्साइटेड हो कल के लिए, वो बताना है। as simple as that. Done. Everyone is going to do this homework, yes or no? इससे क्या होगा हमें भी पता चलेगा। और अगर जो तुमने नोट्स लिखे ना उनके स्क्रीनशॉट्स भेजो, पूरा ग्रुप भर दो व्हाट्सएप ग्रुप का। इट शुड बी लाइक दैट, राइट? क्योंकि जो लोगों ने मिस किया ना उनको लगना चाहिए दे हैव मिस्ड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेशंस ऑफ देयर लाइफ एवर। यू गाइस वर सीरियस। आई एम सुपर एक्साइटेड टू गिव यू लॉट ऑफ वैल्यूएबल स्टफ टुमारो, बिकॉज अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है यार। टुमारो इट्स गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट डे in terms of the English language ever, right? 2024 is just 2 or 3 days away. Wow, I'm super excited. So guys, that would be it for today's session. And एक चीज और है, I am going to make one video, right? अब I'll get my t-shirt, हमारे elite talkers की मैं t-shirt लाऊंगा। I'm going to make one video for you, right? And वो उस वीडियो के आते ही you guys can WhatsApp me. So guys, that would be it for today's session. Saman Maskeen signing off. Give me the t-shirt by the way. So I've gotten this t-shirt, so I'll wear this t-shirt. I'm going, because हमारी elite talkers की t-shirt, I'm going to wear this up. So guys, that would be it for today's session. I'm going to meet you guys tomorrow sharp at 6:45 p.m. में। आना जरूर, नहीं आओगे बहुत पछताओगे। कर लिया ना 2023 में, नहीं आई ना इंग्लिश? Come tomorrow and I'm going to give you that particular gift. So guys, that would be it for today's session. It's Saman Maskeen signing off. चलो यार, लाओ मेरा फोन, मेरा वीडियो बनाने का टाइम हो गया। I'll wear this t-shirt. I'm gonna make the video for you. So guys, that would be it for today's session. कल मिलते हैं। कल at what time? मुझे बताओ। Yes or no? Tomorrow at what time? 6:45. टुमारो एट व्हाट टाइम? स्टार्टिंग मिस मत करना, बहुत अभी कुछ भी नहीं सीखा है। फॉर्मेशन शीट सीखेंगे, इंग्लिश असरा को डीप में सीखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग एक्टर्स का सीक्रेट।
व्हाट नॉट। स्कॉलरशिप के लिए हमें लोगों को सिलेक्ट करना है 2020-24 का जो फर्स्ट बैच होगा। इट्स गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट डे एवर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश एवर in India. It's going to be of that level. So, guys, that would be it for today's session. It's Aman Maskeen signing off, and I will see you sharp in the day number 2, right at 6:45. चलो भाई, शूटिंग का टाइम हो गया. Give me a minute. Guys, bye bye. मैं शूट करता हूँ यार, पहले तो टी-शर्ट डालते हैं. Here we go. Bye bye, guys. फटाफट जाओ. I'll see you in the WhatsApp group, guys. Bye bye. Take care. Happy New Year. Coming soon. Happy New English to you. Bye bye.